हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा पिता परमेश्वर तेरी तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो। ਤੁਸੀਂ ਆਦ ਔਰ ਅੰਤ ਹੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਲਫਾ ਤੇ ਓਮੇਗਾ ਯਿਸੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਾ ਕੇ ਰਾਜਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਤੇਰਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਯਿਸੂ ਜੀ, ਤੇਰੀ ਹੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਲਾਲ ਦੇ ਸਕੀਏ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣ ਸਕੀਏ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸਕੀਏ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਤੇਰੀ ਹੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਹੋਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਤੇਰੇ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੋ, ਲੀਡ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ। ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਸਾਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਦੂਰ ਕਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਣ ਔਰ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਲਾਲ ਦੇ ਸਕਣ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਚ ਛੁਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਲ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਚ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਇੱਕ ਵਰਸ ਪੜੂੰਗੀ। ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਠਹਿਰੇਗਾ, ਬੁੱਧ ਤੇ ਸਮਝ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਸਲਾਹ ਤੇ ਸਮਰਥਾ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਭੈ ਦਾ ਆਤਮਾ। ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀਕ ਆ ਪੂਰਾ, ਇਸ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਰੂਹ ਹੈ ਨਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਾਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਜ਼ਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬੇਟੇ ਨੇ ਉਹੀ ਰੂਹ ਆਪਣੇ ਕੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਲੀ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਾਪ ਦੀ ਰੂਹ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਰੂਹ, ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੇ ਵਸੀਲਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਕੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆਪਣੀ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕ ਹੁੰਦੇ ਜਾਈਏ, ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਦੇ ਜਾਈਏ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ, ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਨਾਫਰਮਾਨੀਆਂ, ਉਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਣ, ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਰਸਟ ਵਰਸ਼ਿਪ ਹਰੂਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। यीशु तेरे लिए है, सारी सताइश यीशु तेरे लिए है, सारा जलाल यीशु तेरे लिए है, सारी सताइश यीशु तेरे लिए है। हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया। मैं मेरी जिंदगी और मेरी अकल, मेरी ये ताकत सारी और मेरा दिल, मेरी ये जिंदगी और मेरी अकल, मेरी ये ताकत सारी और मेरा दिल, मेरी तरबियत यीशु तेरे लिए है, सारी सताइश यीशु तेरे लिए है, मेरी तरबियत यीशु तेरे लिए है, सारी सताइश यीशु तेरे लिए है। हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया। मुश्किलों के खुदा तू है मेरा आसरा, मेरी कुव्वत का चश्मा, तू है जिंदा खुदा। मुश्किलों के खुदा तू मेरा आसरा, मेरी कुव्वत का चश्मा, तू है जिंदा खुदा। सारी यीशु तेरे लिए है,
सारी सताइश यीशु तेरे लिए है, शुक्रगुजारी यीशु तेरे लिए है, सारी सताइश यीशु तेरे लिए है। हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया। मैं तो शाहों का यीशु तू बादशाह, तरीकों में मानेंगे तुझको कामिल खुदा। मुझ शाहों का यीशु तू बादशाह, मेरी कौमें मानेंगी तुझको कामिल खुदा। शाही यीशु तेरे लिए है, सारी सताइश यीशु तेरे लिए है, बादशाही यीशु तेरे लिए है, सारी सताइश यीशु तेरे लिए है। हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया। आमीन। ਆਮੀਨ। ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ। ਇੱਕ ਵਰਸ ਪੜੂੰਗੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਤੁਲ ਹੋਣਾ ਕਬਜ਼ੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਸਗੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਖਣਾ ਕਰਕੇ ਦਾਸ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੌਤ ਤਾਈਂ ਸਗੋਂ ਸਲੀਬ ਦੀ ਮੌਤ ਤਾਈਂ ਆਗਿਆਕਾਰ ਬਣਿਆ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਅੱਤ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭਨਾ ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਬਾਪ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੌਤ ਤਾਈਂ ਸਗੋਂ ਸਲੀਬ ਦੀ ਮੌਤ ਤਾਈਂ ਕੀ ਆਗਿਆਕਾਰ ਬਣਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰੀਏ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੀਏ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਮਤਲਬ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸਗੋਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਖਣਾ ਕਰਕੇ ਦਾਸ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ। ਉਹਨੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਆ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦਾਸ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ, ਹਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੀ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆਪਣੇ ਵਾਂਗੂ ਮਤਲਬ ਪਾਕ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਡਾਇਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਵਰਸ਼ਿਪ ਸਿਸਟਰ ਅਮਨਦੀਪ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਏਸਾ ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਏਸਾ ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਤੇਰੇ ਗੀਤ ਮੈਂ ਜੱਸੂ ਕਦੇ ਵੀ ਗਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਸਾਜ਼ ਕਦੇ ਵਜਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਮੂੰਹੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਸਾਹ ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਡਿੱਗਿਆ ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਏ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਡਿੱਗਿਆ ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਏ, ਦਿੱਤੀ ਆਣ ਤਸੱਲੀ ਜਦ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਦੁਖਿਆ ਏ, ਦਿੱਤੀ ਆਣ ਤਸੱਲੀ ਜਦ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਦੁਖਿਆ ਏ। ਆ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਤੂੰ ਸਹਿੰਦਾ ਨਾ
ਜੇ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਸਾਹ ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਤੇਰੇ ਗੀਤ ਜੱਸੋ ਕਦੇ ਵੀ ਗਾਉਂਦਾ ਨਾ। ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਸਾਜ਼ ਕਦੇ ਵਜਾਉਂਦਾ ਨਾ। ਮੂੰਹੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਸਾਹ ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਲੱਖਾਂ ਐਸੇ ਪਾਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਲੱਖਾਂ ਐਸੇ ਪਾਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਐਸੇ ਪਾਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਭਰਦਾ ਹਾਂ। ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਭਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਸਾਹ ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਟਿਕਿਆ ਏ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਏ। ਦਿੱਤੀ ਆਣ ਤਸੱਲੀ ਜਦ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਦੁਖਿਆ ਏ। ਜਦ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਦੁਖਿਆ ਏ। ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਤੂੰ ਸਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਸਾਹ ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ ਸਿਸਟਰ ਜੀ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਹੋਵਰਸ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਅਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਝਟ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਤੇ ਵੇਖੋ ਆਕਾਸ਼ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਕਬੂਤਰ ਵਾਂਗੂ ਉਤਰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਡਿੱਠਾ। ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਸੁਰਗੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਵਰਸ਼ਿਪ ਸਰਈਆ ਸਿਸਟਰ ਸਰਈਆ ਸੈਡਰਿਕ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। जी ठीक है। हम ज़बूर 99 गाने लगे हैं। यहोवा राजब करता है।
आवाज आ रही? जी जी आ रही। Okay. Praise the Lord. God bless you. God bless you. सारा एंड समर खुदावन ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਇਤ ਨੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋ ਸਾਰੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਲਈ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਰ ਸ਼ਰੀਨ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਾਲੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੁਆ ਕਰਨ ਤੇ ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੈਸਾਈਡ ਕਰਨ। हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड। हम खुदा उनका शुक्र करते हैं प्रस्तिश के लिए और खुदा उनकी हजूरी के लिए। खुदा उन यहाँ हमारे दरमियान मौजूद है और हम पानी और रोटी के लिए भी दुआ करेंगे। हालेलुया जीसस सोरे शिकरिया कातरिया रे बेशेरे बेरे बेरे बेरे। हालेलुया हालेलुया। खुदा उन तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो बाप। खुदा इस वक्त के लिए खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदा तेरा ये हमारे ऊपर रहम है, तरस है। खुदा तूने ये हमें मौका दिया कि हम खुदा तेरी हसूरी में आए, खुदा तेरे तख्त के सामने खुदा हाजिर हों खुदा, और खुदा तुझे सजदा कर सके खुदा, क्योंकि तू ही इज्जत और ताज़ीम के लायक है, सारी प्रस्तिश के खुदा तू ही लायक है। हमारा ईमान है कि खुदा जो भी तेरे हजूर हदिये नजराने खुदा आवाज़ों के ज़रिए चढ़ाए हैं खुदा वो तूने कबूल किए। खुदा आज तू हमसे बोल, कलाम कर खुदा, अपने दिल की बातें खुदा तू हमारे साथ कर और खुदा हमें यीशु अपनी मानद बना, ताकि खुदा हम रोज बरोज खुदा बदलते जाएं, तब्दील होते जाएं खुदा, हम पहले जैसे ना रहें। जो भी बातें तुझे पसंद नहीं है खुदा वो हमारे अंदर से निकल जाए, ताकि खुदा यीशु हम उस तख्त तक पहुंच सके जिसके लिए खुदा तूने हमें चुना है, जिसके लिए तूने हमें बुलाया है, जिसके लिए खुदा तूने हमें दुनिया से अलग किया है। हम खुदा दुनिया जैसे नहीं है, गैर कौमों की तरह नहीं है, हम खुदा तेरी मानिद बन रहे हैं खुदा। तूने इसीलिए हमें खुदा अलग किया। तेरा शुक्र करते हैं खुदा। वो सारी बदी की कुव्वतें जो खुदा हमें तुझसे दूर लेके जाती हैं, जो तेरे कलाम को समझने नहीं देती खुदा, जो तेरे कलाम के ऊपर अमल नहीं करने देती, आज खुदा जब तू बोले तो हमारे अंदर से खुदा वो सारी बदी की कुव्वतें हमारे घरों से, हमारे अंदर से वो यीशु के नाम से निकल जाए। और खुदा तेरा कलाम जब बोला जाए तो बदरूहें डरती और कांपती हुई, थरथराती हुई हमारे घरों से, हमारे अंदर से निकल जाए, ताकि तेरा कलाम का बीज जब बोया जाए तो खुदा वो 100 गुना फल लेके आए। खुदा जो भी बदी की कुव्वतें खुदा उन सीधे रस्तों पे नहीं चलने देती, जो हमें खुदा तेरे कलाम की मीठी बातों को, गहरी बातों को समझने नहीं देती खुदा, वो सारी बदी की कुव्वतें खुदा हमारे घरों से, हमारी जिंदगी से निकल जाएं यीशु के नाम से। और खुदा हम तुझ में जोर पकड़ते जाएं, तेरे जबरदस्त सुरमा बन जाए खुदा यीशु के नाम से। खुदा जिस तरह तेरा कलाम फरमाता है कि तूने हमें इख्तियार दिया है कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और उसकी सारी कुदरत पर गलबा पाओ खुदा, वही जोर, वही ताकत, वही इख्तियार जो तूने हमें दिया है खुदा, वो हासिल करते जाएं खुदा, तुझसे हासिल करते जाएं। वो नया मसा रोज बरोज खुदा तो हमारे ऊपर उंडेल रहा है खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा। और खुदा तू हमें वो खूबसूरत कौम जो है वो बना रहा है, वो खूबसूरत खुदा उम्मत जो है वो बना रहा है, जिस तरह तेरी खूबसूरत उम्मत जो है, खूबसूरत कौम जो है बनी इसराइल है खुदा, हम भी तेरे रूहानी बनी इसराइल कौम है। तो खुदा तू हमें उनकी मानिद बना रहा है खुदा, जिनके बारे में तूने कहा कि मेरा दिल जो है मैं तुम्हें कभी अकेला ना छोड़ूंगा खुदा। इसी तरह से खुदा तू आज हमारे साथ भी बोल, हमारे साथ भी वो बातें कर खुदा, जिस तरह अपनी बनी इसराइल कौम से किया करता था खुदा, उसी तौर से हमें भी खुदा तू
साथ साथ लिए, फिर जैसे उनके साथ आगे आगे चलता था खुदा, तो सारे नाहमवार रस्तों को हमवार बनाता जाता था, और गैर कौमों के ऊपर तेरा रोब और दबदबा ठहरा हुआ था खुदा। आज उसी तौर से हमारे साथ भी तेरी वैसी हजूरी, तेरा वैसा मसा हमारे ऊपर भी ठहर जाए खुदाम यस्सु के नाम से, कि जब हम लोगों से मिलें तो तेरा रोब और दबदबा ठहर जाए खुदा, वो हमारे खिलाफ मुंह न खोलने पाए खुदा, उनके मुंह बंद हो जाए खुदा यस्सु के नाम से। वो कोई भी ऐसी खुदा बात हमारे खिलाफ कहने ना पाए यस्सु के नाम से, कोई हमारे ऊपर लानत ना करने पाए यस्सु के नाम से, कोई जो हमारे खिलाफ चिल्ले चढ़ाए जाते हैं हमारे खिलाफ खुदा, जो भी इब्लीस के प्लान है वो यस्सु के नाम से वो फेल होते जाए, और गैर कौमें यस्सु तेरे नाम से डरती और कांपती हुई हमसे दूर भागें खुदा, क्योंकि वो हमसे नहीं, तेरी हजूरी से, तेरे मसे से खुदा वो डरते हैं, वो कांपते हैं, वो ठहर नहीं सकते उस जगह पे खुदा। उसी तौर से हमारे सबके ऊपर, एक एक के ऊपर खुदा, जो इस मीटिंग में मौजूद हैं, जो इसको सुनेंगे खुदा, इस ग्रुप के एक एक मेंबर के ऊपर वो वैसा मसा तेरा ठहर जाए, तेरा वैसा रोब और दबदबा ठहर जाए खुदा। हमारी जिंदगियों में खुदा उनके 7 रूहें जो हैं वो काम करें खुदा, ताकि हम यीशु तेरी मानित बनते जाएं खुदा, जैसा तू अपने बाप का फर्मा बरदार था खुदा, उसी तौर से हम भी तेरी वफादारी में, ताबेदारी में चलते जाएं यीशु के नाम से। जब हम इस रोटी और पानी को लेते हैं तो खुदा हमारे अंदर से वो सारी गंदगी, नापाकी, गलाजत जो तुझे पसंद नहीं है, वो गंदी बीमारियां, वो लानती बीमारियां खुदा, जो तू मिस्रियों पे लेके आया था, और खुदा तूने वादा किया था कि अगर तुम मेरे साथ फर्मा बरदारी में, रास्तबाजी में चलोगे, तो ये बीमारियां जो मैं मिस्रियों पे लेके आया था वो हमारे ऊपर नहीं आएंगी। तो यस्सु के नाम से खुदा हम तेरी वफादारी में चलने के लिए तैयार हैं खुदा, तेरे ताबेदारी में खुदा चलने के लिए तैयार हैं खुदा। तो हमें और ज्यादा जोर दे, ताकत दे, और खुदा हम हमारे अंदर से ये सारी लानती बीमारियां, ये सारे लानती काम जो हैं खुदा यस्सु के नाम से, जो इब्लीस के काम है, जो शैतान के काम है खुदा यस्सु के नाम से हमारे अंदर से निकलते जाएं खुदा। जैसे जैसे हम इस रोटी को खाएं और इस तेरे लहू को पिएं, जो इस पानी को पिएं, तो खुदा वो सारी नाराजगी हमारे अंदर से यस्सु के नाम से जाती रहे, और हम पाक और साफ बनते जाएं खुदा, जिस तरह के तू पाक है खुदा, उस तरह से हम बनते जाएं खुदा। हमें फजल दे ताकि तेरे सीधे रास्तों पे चल सकें यस्सु के नाम से खुदा। इस दुआ को हम बड़े ही ईमान और भरोसे और तवक्कल से मांगते और पा लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आमीन। वैसे तो अभी ज्यादा नहीं आए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जितने भी हम यहाँ पे मौजूद हैं, आप जरूर मीटिंग जब खत्म हो तो थोड़ी देर ठहरे नहीं, हम कुछ बात करेंगे आज, है ना, मीटिंग के ही बारे में, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं काशफा की किताब, जो आखिरी किताब है, आज उसका हम तीसरा जो चैप्टर है वो शुरू करेंगे। और लेकिन अभी हमारी ये जो क्या कहते हैं कि जो चर्चेज हैं उन्हीं के ऊपर बात हो रही है ना, ये जो तीसरा चैप्टर है, ये 5वां जो चर्च है, कलीसिया है, उसके ऊपर आज हम बातचीत करेंगे, है ना। हमने इफिसस की कलीसिया, स्मरना की, परगमन और थोतेरा की, और आज हम बात करेंगे सरदस देश की कलीसिया जो है उसके बारे में हम बात करेंगे। और हमारे साथ रीडिंग में कौन है? अंजना, अ, अंजना है हमारे साथ। मेरी है बाइबल रीडिंग। ओके जी, माया है और आप है ना, ठीक है। जी जी। चलें ठीक है, और मैं माया नहीं, speak- हाँ जी। तो पहली आयत से आप पढ़ें, ओके लेकिन देखते हैं कि आज हम कितनी आयतों तक बात कर सकेंगे, ठीक है। ओके ओके ठीक है। सरदीस की कलीसिया को पैगाम, और सरदीस की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख कि जिसके पास खुदा की 7 रूहें हैं और 7 सितारे हैं, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू जिंदा कहलाता है और है मुर्दा।
जागता रह और उन चीजों को जो बाकी हैं और जो मिटने को थीं मजबूत कर, क्योंकि मैं तेरे किसी काम को अपने खुदा के नजदीक पूरा नहीं पाया। बस याद कर कि तूने किस तरह तालीम पाई और सुनी थी, और उस पर कायम रह और तौबा कर, और अगर तू जागता ना रहेगा तो मैं चोर की तरह आ जाऊंगा और तुझे हरगिज मालूम ना होगा कि किस वक्त तुझ पर आ पड़ूंगा। अलबत्ता सरदीस में तेरे यहाँ थोड़े से ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपनी पोशाक आलूदा नहीं की। वो सफेद पोशाक पहने हुए मेरे साथ सैर करेंगे, क्योंकि वो इस लायक हैं। जो गालिब आए उसे इसी तरह सफेद पोशाक पहनाई जाएगी, और मैं उसका नाम किताब हयात से हरगिज ना काटूंगा, बल्कि अपने बाप और उसके फरिश्तों के सामने उसके नाम का इकरार करूंगा। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। आमीन। आमीन जी, गॉड ब्लेस यू। हमने 7 रूहों पे पहले भी बात की हुई है ना, कि और मेरा ख्याल है हम सबको पता है कि कौन सी 7 रूहें हैं, है ना? और जो 7 सितारे हैं, अगर किसी को याद है? वफा, याद है 7 सितारे कौन किस चीज को पेश करते हैं? नहीं, सॉरी, अभी मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। ओके। 7 सितारे जिनको खुदावंद जो है वो खुदावंद यीशु मसीह खत लिख रहा है, यानी खुदा के खादम जो थे, हर कलीसिया के फरिश्ते को लिखा है ना। मैं कलीसिया कहने साथी, लगी, बात कलीसिया हाँ साथी। हाँ जी, तो 7 सितारे उनको पेश करते हैं, है ना, यानी जो खुदा के खादम हैं उनको पेश करते हैं। और ये चिरागदान जो है ये 7 कलीसियों को पेश करते हैं, है ना। तो इसलिए पहली आयत में ये हम देख रहे हैं कि 7 रूहें, और ये भी हमने पढ़ा था कि 7 रूहें कौन सी हैं जिनके बारे में ये इस महीने हम कहले बातचीत कर रहे हैं ना। 7 रूहें जो खुदावंद की 7 रूहें, उनको कहा है बर्रे की आंखें कहा था। हमने एक हवाला पढ़ा था, है ना, ये मुकाश भाई की किताब में, कि वो 7 रूहें क्या हैं, वो खुदावंद यीशु मसीह के आप ऊपर आके ठहरी थी, जैसे कि मेरा लबी अंजना ने वो पढ़ा था यसाया की किताब में जो है, कि वो खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर 7 रूहें आके ठहरी थी, और वही 7 रूहें जो हैं वो हमारे ऊपर भी ठहरी हुई हैं। जब हम मसीह में आ जाते हैं तो वही हमें तैयार कर रही हैं, वो 7 रूहें जो हैं। तो इसलिए हमने ये सीखा था कि जो इनको इजाजत देता है इन 7 रूहों को, वो उनकी जिंदगी में काम करती हैं। ठीक है, तो ये 7 रूहें जो हम जैसे कह लें कि जो आज हमने देखा कि आज खुदा की रूह के बारे में थोड़ा सा हमने अंजना से सुना, है ना। तो ये 7 रूहें जो हैं ये खुदावंद के तख्त के सामने हमने हवाला पढ़ा था कि खड़ी होती हैं, और यही 7 रूहें अब हमें तैयार कर रही हैं, है ना। खुदा के तख्त के सामने 7 रूहें हैं। रूहुल कुद्दस तो एक ही है, लेकिन इस एक रूह में 7 रूहें हैं। इसके लिए एक हवाला जो है हम पढ़ते हैं, मुकाशफा 5 बाब और उसकी 6 आयत में लिखा है, जिसमें कि ये खुदा बाजी के मैं पढ़ूं बर्रे की, पंजाबी में? हाँ जी, कि ये बर्रे की 7 आंखें हैं। मुकाशफा 6 बाब और 5 बाब उसकी 6 आयत। 5 बाप उसके। वो वर्सेस मैंने ग्रुप में भेजी हुई हैं, देखना वफा। हाँ जी बाजी जी जी, देख लीजिए। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਿੰਘਾਸਣ ਅਤੇ ਚੌਹਾਂ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਲੇਲੇ ਨੂੰ ਜੋ ਮਾਨੋ ਖੋਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਖਲੋਤਾ ਵੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ 7 ਸਿੰਘ 7 ਅੱਖੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੱਤੇ ਆਤਮੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਘੱਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਮੀਨ। हाँ जी, जी वफा पढ़ना।
ओके। और मैंने उस तख्त और चारों जानदारों और उन बुजुर्गों के बीच में गोया ज़बा किया हुआ एक बर्रा खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थीं। ये खुदा की 7 रूहें हैं जो तमाम रूहें जमीन पर भेजी गई हैं। हाँ बस। जी, यानी हाँ, आमीन। ये 7 आंखें जो हैं वो किस चीज को पेश करती हैं, यानी वो बर्रे की आंखें हैं, है ना? यानी कि खुदावंद यीशु मसीह की। और मैंने उस तख्त के और चारों जानदारों के चारों जानदारों का, या उसके हम फिर से बाद में बात करेंगे, मेरे ख्याल अगले चैप्टर में ही है। तो बुजुर्गों के बीच में गोया ज़िबा किया हो एक बर्रा खड़ा देखा, इसके 7 सींग और 7 आंखें थी। ये खुदा की 7 रूहों में जो रोया ज़मीन पर भेजी गई हैं। आंखें जो हैं वो हमने थोड़ा पीछे भी सीखा था कि हिकमत और ख़िर्द को पेश करती हैं, है ना? पालूस रसूल ने हमें बताया है, ये हम इफिसियों पहला बाब और उसकी 17-18 आयत में देखते हैं, है ना? जी, अंजना और वफ़ा पढ़ना। इफिसियों उसका पहला बाब और उसकी 17 और 18 आयत में, जिसमें हमें पता चलता है कि ये क्या है। क्योंकि आंखें किसको पेश करती हैं? हिकमत को, ख़िर्द की रूह को। ओके। 17 बाब इफिसियों पहला बाब उसकी 17 आयत कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह का खुदा जो जलाल का बाप है तुम्हें अपनी पहचान में हिकमत और मकाशफा की रूह बख्शे और तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं, ताकि तुमको मालूम हो कि उसके बुलाने से कैसी कुछ उम्मीद है और उसकी मिरास के जलाल की दौलत मुकद्दसों में कैसी कुछ है, और हम ईमान लाने वालों के लिए उसकी बड़ी कुदरत क्या ही बेहद है और उसकी बड़ी कुव्वत की तासीर के मुआफिक। आमीन। ਹਾਂਜੀ हाँ ਕਿ जी, ਸਾਡੇ 19 ਪ੍ਰਭੂ तक ਯੀशੂ पढ़ा। ਮਸੀਹ ਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਜ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਹੋਵੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਵੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਵਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। आमीन। हाँ ने यानी इसमें हमें पालूस रसूल ने ये एक किस्म के कलम बताया या समझाया कि ये रूहें जो है हमारे अंदर काम कर रही है ना? यानी खुदावंद की जो 7 रूहें तब ही जैसे कह लें हमारे दिल की आंखें जो हैं वो रोशन होती हैं। यानी हमने पीछे एक उसमें सीखा था कि जैसे जो कह लें गैर कौमें हैं वो उनकी 5 हिस्से हैं, जैसे कह लें वो छूने की, चखने की, है ना? तो वो उस तरह से जैसे कह लें हर बात को समझते हैं, देखते हैं। और लेकिन हम जो खुदावंद के लोग हैं, हमें खुदावंद की जो ये रूह है, यानी हमें ये एक जैसे कह लें हिस्स जो है बख्शी गई है कि हम खुदा के रूह से हर बात को, हर काम को समझते हैं, देखते हैं, क्योंकि हमारी क्या है, दिल की आंखें रोशन हैं। तो ये रोशन किस तरह होती हैं? खुदा की हिकमत से, खुदा के यानी ये जो 7 रूहें हैं उससे हम हर बात को जैसे ये 7 रूहें जो हैं हिकमत की है, फ़िर्द की, जैसे कह लें कुदरत की रूह है, और खुदावंद के खौफ की रूह, है ना? और कौन-सी है? काउंसलिंग की जो रूह है ना? तो ये 7 रूहें जो हैं हम इस तरीके से दुनिया की बातों को या कलाम की बातों को हम समझते हैं और देखते हैं। लेकिन जो दुनिया है कौमें हैं, दूसरी हैं, वो उन 5 हिस्सों से समझते हैं। लेकिन हम इन 7 रूहों से या खुदा की हिकमत से हर बात को जैसे कह लें कि समझने की कोशिश करते हैं। इसलिए हम दुनिया से क्या है, मुख्तलिफ हैं, हम दुनिया से अलग हैं। हम खुदा की अक्ल से कह लें कि समझने की या हालात को समझने की कोशिश करते हैं या पहचानते हैं, है ना? तो इसलिए हम जो है खुदावंद की हिकमत से समझते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। इसलिए कभी हमें दुनिया जो है वो मशवरे दे तो उन पे ना हम चलें। हम अंदर से जो हमारा खुदावंद ने हमारी मदद के लिए रूहें बख्शी हुई हैं, हमें दी हुई हैं, हम उनसे मशवरा करें। हम उनसे माँगे कि खुदावंद हमें समझ दे, इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है या खुदावंद के कलाम को कैसे समझना है, या
जो क्या कहते हैं हिकमत है, खुदावंद की हिकमत से करें। दुनिया की जो अक्ल है, खुदावंद वो हमें खुदावंद का कलाम बताता है कि वो ख़त्म होने वाला है, या वो खुदावंद जो दुनिया की हिकमत है वो खुदावंद ने कहा है वो बेवकूफ़ी है ना? तो इसलिए हमें उनकी अकल पे नहीं चलना, हमें जो कलाम बताता है या खुदावंद की रूहें जो हैं हमें समझाती हैं, बताती हैं, हमें उन पे अमल करना है। तो इसलिए हमारी जो आँखें हैं, हम दिल की हमारे जो हैं कह लें कि रोशन हैं। तो इसलिए हम जो दुनिया से इसीलिए निराले हैं, हम अगर उनके से काम करें, उन्हीं की तरह जो सारे हालात हैं या सारे काम जो है उन्हीं की तरह समझे, तो फिर हम में और उनमें फ़र्क नहीं है, है ना? तो इसलिए हमें ये हिकमत की रूह जो है वो दी गई है ताकि हम हर काम को उससे पहचानें, खुदावंद की अकल से, हिकमत से। तो और दूसरा ये सींग जो है जो बर्रे के हमें नज़र आ रहे हैं उसके लिए हवाला हम पढ़ते हैं जी ज़बूर 132 है, उसकी 17 आयत। ਹਾਂਜੀ ਉਥੇ ਮੈਂ ਦੌਤ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਫੁੱਟਵਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਸੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਲਈ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਤਿਆਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਇੱਕੇ ਵਰਸੇ हाँ जी 18 और ਵੀ ਹੈ ਸਰ। हुँ, ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਦੀ ਉਥੇ ਮੈਂ ਦੌਤ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਫੁੱਟਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਸੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਲਈ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਤਿਆਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਪਵਾਵਾਂਗਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਮੁਕਟ ਚਮਕੇਗਾ। ਆਮੀਨ। आमीन। जी वफ़ा? मैं पढ़ूं? ओके। हाँ जी। वही मैं दाऊद के लिए एक सींग निकालूंगा, मैंने अपने ममसुआ के लिए चिराग तैयार किया है। मैं उसके दुश्मनों को शर्मिंदगी का लिबास पहनाऊंगा, लेकिन उस पर उसी का ताज रौनक अफरोज होगा। आमीन। 17-18 ना बस। हाँ जी, और ज़बूर इसी का 92 ज़बूर जो है उसकी 10 आयत। ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਤੂੰ ਜੰਗਲੀ ਸਾਂਢ ਦੇ ਸਿੰਗ ਵਾਂਗੂ ਮੇਰੇ ਸਿੰਗ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ अच्छा ਹੈ 92। मैं हाँ, सजरे तेल ना मलिया गया। हाँ जी। पढ़ रहे हो वफ़ा? जी जी। 92 लेकिन तूने ज़बूर। मेरे सींग को जंगली सांड के सींग की मानित बुलंद किया है, मुझ पर ताजा तेल मला गया है। आमीन। आमीन, आमीन। हाँ जी। तो ये हमें पता चलता है कि जो सींग है खुदावंद के ज़ोर को, ताकत को या जिनको खुदावंद ने मसा किया है ना? उनको पेश कर रहा है। तो अ, जैसे कह लें कि खुदावंद ने अ, जब हम कहते हैं कि किसी भी खिदमत के लिए खुदावंद चुनता है ना? तो खुदावंद क्या है हमें मसा करता है, ताज़ा तेल से मसा करता है और ज़ोर और ताकत जो है वो हमें देता है उस जैसे कह लें कि काम को करने के लिए, उस खिदमत को करने के लिए। तो ये खुदावंद जो है अपने लोगों को जैसे कह लें कि चुनता है, ज़ोर देता है, ताकत देता है। बस 7 रूहें खुदा की कामिल हिकमत और कुदरत को दिखाती हैं जो कि ख़ास यानी जो इलाही एक जैसे कह लें ज़ोर और ताकत को और जो खुदा की सिफ़तें हैं, उसको बयान करते हैं। एक और हवाला हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों 1 बाब और उसकी 24 आयत। ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਯਹੂਦੀ ਭਾਵੇਂ ਜਨਾਨੀ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਆਮੀਨ। लेकिन जो बुलाए हुए हैं यहूदी हो या यूनानी, उनके नजदीक मसीह खुदा की कुदरत और खुदा की हिकमत है। आमीन। हाँ जी, कौन है हिकमत? जो बुलाए हुए हैं, है ना? खुदा की हिकमत। जी जी बुलाए हाँ, हुए। हाँ। पहले आगे भी थोड़ा-सा पढ़ लें ताकि और ज़्यादा थोड़ा-सा वाज़ेह हो जाए। ओके। क्योंकि खुदा की बेवकूफ़ी आदमियों की हिकमत से ज्यादा हिकमत वाली है और खुदा की कमजोरी आदमियों के जोर से ज्यादा जोरावर है। ऐ भाइयों, अपने बुलाए जाने पर तो निगाह करो कि जिस्म के लिहाज से बहुत से हकीम
बहुत से इख्तियार वाले, बहुत से अशराफ नहीं बुलाए गए, बल्कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफ़ों को चुन लिया कि हकीमों को शर्मिंदा करे, और खुदा ने दुनिया के कमज़ोरों को चुन लिया कि जोरावरों को शर्मिंदा करे, और खुदा ने दुनिया के कमीनों और हकीरों को बल्कि बेवजूदों को चुन लिया कि मौजूदों को नेस्त करे, ताकि कोई बशर खुदा के सामने फख्र न करे। लेकिन तुम उसकी तरफ से मसीह यस्सु में हो, जो हमारे खुदा के लिए की तरफ से हिकमत ठहरा, यानी रास्तबाजी और पाकीज़गी और मुखलसी, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो कि जो फख्र करे वो खुदावंद पर फख्र करे। आमीन। आमीन। हाँ जी। जो तो जो यानी क्या कहते हैं, दुनिया की हिकमत है, खुदावंद ने कहा कि वो क्या है, वो बेवकूफ़ी है। वो चाहे हम कितने ही देखते हैं जी, हम उसको बड़ा आलम और कहते हैं कि है ना, लेकिन खुदावंद कह रहा है कि खुदावंद की नज़र में वो क्या है, बेवकूफ़ी है। खुदावंद की नज़र में उनकी कोई वो नहीं है। लेकिन जब हम खुदावंद में आते हैं तो खुदावंद की जो हिकमत है, यानी फिर हम जो कह लें खुदावंद के लोग हैं, हम में से भी हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं या कोई ऐसी अक्लमंदी की बात कर रहे हैं, तो वो उसमें हमारा कोई कमाल नहीं है ना? तो ये ज़रूर कि वो किसकी हिकमत से कर रहे हैं, खुदावंद की हिकमत से कर रहे हैं, इसलिए खुदावंद ही पर फ़ख्र करना चाहिए, ना कि हम जो कह लें खुदा के लोग हैं अपने ऊपर फ़ख्र करना शुरू कर दें, है ना? कि शायद मैं कोई बड़ी अक्लमंद हूँ, या ऐसे जो काम है वो शायद कोई मेरी वजह से हो रहे हैं, है ना? तो ये खुदावंद का बंदा हमें साफ-साफ ही बता रहा है कि खुदावंद पर फ़ख्र करें, ना कि हम अपने ऊपर करना शुरू हो जाएँ। तो इसलिए ये खुदावंद की जो हिकमत है, खुदावंद के जो ये 7 रूहें हैं, वो हमें तैयार कर रही हैं, या वो हमें जैसे कह लें कामलियत की तरफ लेके जा रही है। हमारी इसमें इसीलिए ये अभी हम पढ़ते हैं कि इसीलिए खुदावंद कह रहा है कि हम इनको काम करने दें। ये 7 रूहें जो हैं, ये इनको हम काम करने दें अपनी ज़िंदगी में। अगर हम काम नहीं करने देंगे, तो फिर हम कामिल नहीं बन सकते, है ना? खुदावंद अपने आप को कामिल, कुदरत और खुदा की हिकमत के तौर पर ज़ाहिर करके कलीसिया को ये समझाना चाहता है कि कामिलियत तक पहुँचना सिर्फ़ उसके वसीला से मुमकिन है। अगर कलीसिया अपने आप को कामिलियत तक पहुँचाना चाहती है, तो पाक रूह को अपनी तमाम नेमतों के साथ अ, इसको काम करना होगा। रूह की नेमतें 2 हिस्सों में तक़सीम की जाती हैं, है ना? यानी ये एक वाज़ह हमें खुदावंद का बंदा जो है यानी खुदावंद की तरफ से हमसे बात कर रहा है, कलीसिया से बात कर रहा है कि खुदा की ये जो 7 रूहें हैं, इनके अ अ, यानी इनको जब तक हम काम नहीं करने देंगे, हम कामिल इंसान नहीं बन सकते। हम कामलियत की तरफ आगे नहीं बढ़ सकते। ये जो नेमतें जिनके बारे में हमने अभी थोड़ा अपने ग्रुप में सीखा है ना, कि कौन-कौन सी नेमतें हैं। यही नेमतें हमें असल में क्या कर रही हैं, तैयार कर रही हैं, या ये खुदा की जो 7 रूहें हैं, ये हमें कामिल बना रहे हैं। इसके बगैर ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि फिर तो हम दुनिया की अक्ल से चल रहे हैं, फिर हम अपनी मर्ज़ियाँ करते हैं और खुदावंद की हिकमत को, खुदावंद की जो कुदरत है, उसको अपनी ज़िंदगियों में काम नहीं करने देते, है ना? तो इसलिए हम कामिल इंसान जैसा कि खुदावंद चाहता है, जैसा वो पाक हमें बनाना चाहता है, वो हम बन नहीं सकते कभी भी। ये एक पालूस रसूल जैसे कह लें कि वो हमें बता रहा है, वो हमें समझा रहा है कि जब तक हम इन रूहों को, इन नेमतों को अपनी ज़िंदगी में काम नहीं करने देंगे, तब तक हम उस खुदावंद के जो म्यार है, उसके कद के अंदाज़े तक पहुँच नहीं सकते। तो इसलिए ये 7 रूहें हमारी मदद के लिए हैं कि खुदावंद की समझ से चलें, खुदावंद की हिकमत से, उसकी जो इल्म की रूह है ना? अ, उसको अपनी ज़िंदगी में काम करने दें। तो इसको पालूस रसूल ने कह लें या खुदावंद ने हमें समझाने के लिए इनको 2 जैसे कह लें उसमें हिस्सों में तक़सीम किया है, यानी कुदरत की नेमतें और हिकमत की नेमतें, है ना? जो कुदरत की नेमतें हैं, उसमें ईमान आता है और यानी जो कुदरत की रूह है।
उसमें ईमान आता है, उसमें मौजज़ात और शफ़ा जो है ये आता है। यानी जब हम 7 रूहें जो हैं, ये जो कुदरत की रूह है, उसमें जब तक यानी हमारी ज़िंदगी में ईमान की रूह जो है वो नहीं काम करी और हमारी ज़िंदगी में मौज़े जो हैं उनको हम जैसे कह लें इजाज़त नहीं देते, अलाउ नहीं करते, तब तक हो नहीं सकते जब तक हमारा ईमान जो है खुदावंद के ऊपर उस तरह का नहीं है। तब तक हमारी जो इलाही शिफ़ा है वो हमारी ज़िंदगियों में काम नहीं करती, है ना? हम हासिल नहीं कर सकते खुदावंद की जो क्योंकि खुदावंद के ऊपर हमारा उस तरह का ईमान नहीं है, ये कुदरत की रूह ही है, जो हमारा ईमान जो है खुदावंद के ऊपर उस तरह का जैसे कह लें पैदा करती है या बनाती है कि हम खुदावंद पे उस तरह का ईमान रखें कि हमारी ज़िंदगी में मौज़ें होना शुरू हो जाएँ और ये अजीब काम जो हैं यानी ये होना शुरू हो जाएँ। जब तक हम अलाउ नहीं करेंगे ये कुदरत की रूह को, तब तक हमारी ज़िंदगी में मौज़ें नहीं होंगे। क्योंकि हमने इस कुदरत की रूह को अपनी ज़िंदगी में लिया ही नहीं है, मतलब इजाज़त नहीं दी कि वो काम करे। तो इसमें 3 तरह के हमने देखा कि यानी ईमान ईमान पहले हमारा इस तरह का होना चाहिए कि हमारा दुनिया के जैसे कामों या दुनिया की हिकमत जो है उस पे हमारा ईमान ना हो, हमारा खुदावंद पे ईमान हो कि खुदावंद ये मेरे लिए कर सकता है, मौज़े कर सकता है। शिफ़ा जो है, इलाही शिफ़ा जो है हमारी ज़िंदगी में क्योंकि खुदा ने कहा है कि जो उसको छूने से या उसका लहू जो है अगर हमारे ऊपर लग जाता है तो हमें शिफ़ा मिल जाती है ना? तो ये कुदरत की रूह से हो रहा है। लेकिन हम इसका मतलब इलाही शिफ़ा पे हमारा ईमान नहीं है या हमारे ज़रिए से किसी को शिफ़ा नहीं मिल रही या हमें खुद शिफ़ा नहीं मिल रही, है ना? इलाही जो शिफ़ा है, यानी खुदा की कुदरत से, ताकत से, है ना? दवाइयों से नहीं या मौत से जो होते हैं वो हमारी किसी वजह से नहीं लेकिन खुदावंद के अ, रूह के वसीला से मौत से जो है हमारी ज़िंदगी में होना शुरू हो जाए। तो ये कुदरत की रूह कर रही है, तो इसको हम कई दफ़ा बाकी रूहें तो कई दफ़ा होता है हमारे अंदर बड़ी समझ होती है, हम हालात को और या खुदा के कलाम को समझ रहे होते हैं, है ना? तो वो समझ की रूह जो है, अंडरस्टैंडिंग की रूह जो है, वो तो काम कर रही है। लेकिन ये कुदरत की रूह को हम जैसे कह लें इजाज़त नहीं दे रहे कि वो मेरी ज़िंदगी में काम करे, तो फिर वो काम नहीं करती। शायद बाकी की रूहें जो हैं या कई दफ़ा हमारे अंदर होता है खुदावंद के डर और खौफ की रूह तो होती है लेकिन बाकी की जो रूहें हैं, उनको हम अलाउ नहीं कर रहे कि वो हमारी ज़िंदगी में काम करें, है ना? तो इसलिए ये 2 तरह के जैसे कह लें कि हिस्सों में तक़सीम किया गया है कि कुदरत की रूह और कुदरत की नेमतें। तो कुदरत की जो रूह है, उसकी जो नेमतें हैं, वो इस तरह काम करेंगी कि मौज़ होना हमारी हर काम में मौज़ा हो रहा है, अजीब-अजीब काम हो रहे हैं हमारी ज़िंदगी में, है ना? और शिफ़ा जो है वो मिल रही है। तो उसका मतलब है ये कुदरत की नेमतें हमारी ज़िंदगी में काम कर रही हैं, है ना? तो जो हिकमत की नेमतें हैं, उसमें हमारा ईमान जो है कह लें कि इस तरह का है कि ये जो अ जो जो इल्म की रूह है, यानी नॉलेज की जो रूह है, वो क्या करती है, वो हमारे जो हमारी ज़िंदगी में हो रहा है ना? अजीब काम कह लें या खुदावंद के काम जो है हमारी ज़िंदगी में हो रहे हैं, ये जो है हमें उस पे ईमान रखना है या उसके बारे में हमें बता रही है, यानी इल्म की रूह जो है। या हमारे पीछे जो ज़िंदगी में हो गया हुआ है वो हमें ये रूह जो है हमें जैसे कह लें गाइड करती है या हमें समझाती है। ये इल्म की रूह कर रही है कि हमारी ज़िंदगी में जैसे विज़न कई दफ़ा नज़र आते हैं, ख्वाब नज़र आते हैं, तो जो हमारी ज़िंदगी में हो रहा होता है ना? उसके बारे में हमें बताती है या पीछे जो कुछ हमने कह लें किया होता है, गलतियाँ की होती हैं या कुछ भी वो खुदावंद हमें समझा रहा होता है या हमसे बातचीत कर रहा होता है ना? लेकिन हिकमत की जो रूह है वो हमें आने वाले जैसे कह लें कि जो कुछ होना होता है फ्यूचर में, उसके बारे में आगाह करती है। तो ये दोनों ही जैसे कह लें कि अ,
कुदरत की नेमतें और हिकमत की नेमतें हमारी ज़िंदगी में जो काम है वो होने चाहिए हमारी ज़िंदगी में। बथेरे यानी जो लोग हैं वो अपने अंदर यानी ज़ोर को, ताकत को जो खुदा की कुदरत है उसको हम इजाज़त नहीं देते, इसलिए हम कामलियत तक पहुँच नहीं सकते। जब तक हम इनको अलाउ नहीं करेंगे, जब तक हम खुदावन के रूह को काम नहीं करने देंगे, तब तक ये जैसे कह लें हमने शायद एक दफ़ा पहले भी बात की थी कि तब तक खुदावन जो है वो ज़बरदस्ती नहीं हमारे साथ करता। हमें ये उसने दी तो ही हैं ये 7 रूहें, लेकिन इनको इस्तेमाल या इनको इजाज़त जब तक हम अपनी ज़िंदगियों में नहीं देंगे, ये हमारी ज़िंदगी में काम नहीं करेंगी। वो हमारे पास हैं, जैसे कह लें हमने हाथ में तलवार पकड़ी हुई है तो चलानी तो हमने है ना, जब तक हम उसको चलाएँगे नहीं, तब तक हमारी तब तक हम फ़तह जो है वो नहीं पा सकेंगे, है ना? कोई हमें मार रहा है, कोई हमारे ऊपर अटैक कर रहा है ना? लेकिन वो तलवार जब तक चलाएँगे नहीं, हाथ में है हमारे, लेकिन जब तक चलाएँगे नहीं, तब तक दूसरे बंदे को या दुश्मन को हम मार नहीं सकते। इसी तरह ये 7 रूहें तो खुदावंद ने हमें दी हुई हैं। ये हमारी जैसे कह लें मदद के लिए, हेल्प के लिए दी हुई हैं, लेकिन जब तक हम इसको अपनी ज़िंदगी में काम नहीं करने देंगे, हम अपनी ही अक्ल और समझ जो है इस्तेमाल करते रहेंगे, तो ये हिकमत की रूह जो है हमारी ज़िंदगी में काम नहीं करेगी। हमें आने वाले यानी जैसे कह लें अज़ाब से, गज़ब से बचा नहीं सकती। यही हिकमत जो है यानी हमें सिखाती है कि जैसे ये इल्म की रूह है, हम इल्म को क्या है सीख रहे हैं यानी कलाम से या खुदा के बंदों से हमें वो इल्म जो है हासिल हो रहा है, खुदा उनके कलाम की बातें जो हैं हमें हासिल हो रही हैं, है ना? लेकिन हमारे अ, इस पे अमल नहीं कर रहे, इस पे हमारी जो अ, यानी हमारे अंदर ये हिकमत नहीं है, ये अकल नहीं है कि अगर हम इस पे अमल करेंगे तो उस ग़ज़ब-ए इलाही से बच सकते हैं। तो इसलिए ये दोनों ही कुदरत की और हिकमत की जो रूहें हैं जब तक हमारी ज़िंदगी में नेमते ये काम नहीं करेंगे, हम उस जो आने वाला है, यानी जो हमारे लिए कह लें कि उसने जो अच्छा अजर कह लें या बुरा अजर जो रखा हुआ है, अगर हम उस पे अमल नहीं करेंगे, यानी इस हिकमत को, इस अक्ल को इस्तेमाल नहीं करेंगे कि हम इससे जो आने वाला है गज़ब उससे बच जाएँ, है ना? और हमें जो खुदावंद ने ये मदद के लिए दी हुई हैं रूहें, उनके हम जैसे कह लें उनका कहना मानें या उनको काम करने दें, तो हम उस ग़ज़ब-ए इलाही से या आग की झील से या उस जहन्नम की आग से हम बच सकते हैं, अगर हम हिकमत को इस्तेमाल करेंगे, है ना? लेकिन अगर हम इस्तेमाल नहीं करते यानी ये इल्म जो हमें दिया गया है, ये खुदा के हुक्म, ये खुदा की बातें मुँह की दी हुई हैं, इन पे अमल नहीं कर रहे, तो ना हम ये इल्म की रूह को जैसे कह लें इस्तेमाल कर रहे हैं और ना हिकमत की रूह को, ना कुदरत की रूह को इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि ये हमें जो हमने पीछे किया हुआ है, उसके बारे में हमें बता रहे हैं। ये खुदावंद का पाक कलाम जो है, जो हमने गलतियाँ की हुई हैं या खुदा ने कैसे हमें बचा सकता है, ये हमारी ज़िंदगी में काम हम तब हो सकता है, हम पाक-साफ़ तब हो सकते हैं जब तक हम इनको काम करने देंगे। लेकिन जब जैसे ही हम अपनी अक्ल इस्तेमाल करते हैं या अभी जो कुरिन्थियों के खत में हमने पढ़ा कि हम दुनिया के जैसे कह लो हकीमों पे खुदावंद ने कहा कि उनको खुदावंद उनकी जो हिकमत है उनको क्या करेगा शर्मिंदा करेगा। दुनिया की जो हिकमत है वो खुदावंद कहता है वो बेवकूफ़ी है ना? तो हम कहते हैं नहीं दुनिया मतलब या डॉक्टर जो हैं या ये जो हैं इनको भी तो खुदा ने ही हिकमत दी है। लेकिन खुदावंद देखें यहाँ पे साफ हमें ये कुरिन्थियों के खत में बता रहा है कि दुनिया की जो हिकमत है वो क्या है वो बेवकूफ़ी है। ये जो 20 आयत अंजना और वफ़ा पढ़ना अ, ये पहला कुरिन्थियों उसका जो हमने पढ़ा, उसकी 20 आयत में खुदावंद कह रहा है कि जो हकीम है, यानी कि जो कह लें डॉक्टर हैं, उनकी हिकमत क्या है? खुदा की हिकमत खुदावंद जो है उनको बेवकूफ़ी कह रहा है। जी, अंजना आप पढ़ेंगी? हाँ जी, फर्स्ट चैप्टर
हाँ उसकी 20 आयत, पहला करंथियों, हाँ जी। हाँ उसकी किथे 20। बुद्धिमान किथे बुद्धिमान किथे ਗ੍ਰੰਥੀ ਕਿਥੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦਾ ਵਿਵਾਦੀ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਮੂਰਖਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ हाँ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਇਆ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾਈ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਚਾਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇ। ਆਮੀਨ। आमीन। तो यहाँ पे खुदावंद हमें साफ यानी अपने बंदा के जरिए बता रहा है कि जो दुनिया की हिकमत है वो बेवकूफ़ी है, और हम सभी जो ये कुदरत की रूह को काम नहीं करने देते, खुदावंद की कुदरत को यानी इलाही शिफा को हम नहीं लेते, या मौत से हमारी जिंदगी में नहीं होते, ईमान जो की रूह जो है उसको हम काम नहीं करने देते अपनी जिंदगी में, तो खुदावंद देखे कि ये कह रहा है ना। तो इसलिए हम ये कुदरत की रूह जो है जिसमें ईमान आता है, जिसमें मौजज़ात आते हैं, हम अगर अपनी ही अकल से सोचते रहेंगे कि ये काम इस तरह से नहीं हो सकता, इसका कोई अब रास्ता नहीं है, हम इस मुश्किल में से या इस परेशानी में से निकल सके, है ना। लेकिन खुदावंद क्या है, उन हालात में से, उन क्या क्या है मुश्किल में से हमें मौजज़ाना तरीके से निकाल सकता है। जिस तरह इसराइलियों को समुंदर के 2 हिस्से करके या यरदन को 2 हिस्से करके मौजज़ाना तरीके से खुदावंद ने निकाल लिया था, तो वो क्या थी, वहां पे खुदा की कुदरत की रूह जो थी वो काम कर रही थी, मौजे हो रहे थे उनकी जिंदगी में। या उनके जैसे एक जगह लिखा हुआ है कि ना उनकी जूतियां टूटी, ना उनके कपड़े जो थे वो फटे थे, या इस तरह कुछ लिखा हुआ है। तो ये किसकी रूह से हुआ था? कुदरत की रूह से, मौजज़ाना तरीके से हुआ था, है ना। और अ, जो इलाही शिफा है ना, वो किस तरह होती है? हम कहते हैं कि वो जी अल्ट्रासाउंड करवा लिया है, एक्स-रे हो गया है, या कैंसर है किसी को, या कि ये तो हमें मौत की तरफ लेके जाता है। ये तो यानी डॉक्टर भी जवाब दे देते हैं, है ना। लेकिन खुदावंद क्या है, वो मौजज़ाना तरीके से या कुदरत की रूह से उसको इलाही शिफा जो है वो मिल सकती है। उस लेकिन अगर हमारा ईमान होगा, है ना, अगर हम खुदा की ये कुदरत की रूह जो है उसको अपनी जिंदगियों में काम करने देंगे, तब ये होगा। लेकिन अगर हमारा ईमान उस तरह का नहीं है, हम जैसे कह लें, और कई दफा होता है हम सब जो बड़े होशियार बनते हैं डॉक्टरों के पास भी जाते रहते हैं, और सब कुछ वो हकीमों के पास और पीरों फकीरों के पास भी, और बाकी के काम भी करते रहते हैं, तवीज़ धागा भी करा लिया, सब कुछ वो भी कराते रहते हैं, और कहते हैं कि खुदावंद इस बंदे को शिफा भी देते हैं। तो तब शिफा नहीं मिलती, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, वो दूसरे खुदाओं के पास भी जा रहे हैं, और हमारा जो जिंदा खुदा है उसके पास भी जा रहे हैं, तो खुदावंद इस तरह भी शिफा जो है नहीं देता, क्योंकि हमारा ईमान खुदावंद पे नहीं है। तो ये कुदरत की रूह है जो है, इसमें क्या है, हमारा ईमान खुदावंद पे होना चाहिए और उसके इस कुदरत की रूह को अपनी जिंदगी में काम करने दे, फिर शिफा जो है, इलाही शिफा जो है वो मिलेगी। लेकिन अगर हम चारों तरफ घूमते रहें कि जैसे कह लें डॉक्टर भी और पीर फकीर भी जो तवीज़ धागा हम कराते हैं, उनके पास भी जाते रहें, और खुदावंद से भी दुआएं करते रहें, रोजे रखते रहें, नवीने करते रहें, सारा कुछ करते रहें, रोजरियां पढ़ते रहें, तो फिर इलाही शिफा जो है वो हमें नहीं मिलती। इलाही शिफा का मतलब है कि हमने कुछ भी नहीं किया और खुदावंद ने हमें शिफा जो है वो दे दी है, यानी हमने कोई दवाई भी यूज नहीं की, कुछ किसी डॉक्टर के पास नहीं गया, तो हमें जो क्या है, क्योंकि खुदावंद क्या कह रहा है कि उस दुनिया की जो हिकमत है, वो हकीमों की जो हिकमत है वो बेवकूफी है ना। तो फिर खुदावंद अपना जो काम है वो नहीं करेगा। तो इसलिए हम कुछ लोग जो हैं, हम इस तरह बड़े खुदावंद को कौन, जैसे कह लें कि दाल लगा सकता है, ये खुदावंद से कौन सी आप बात जो है हम छुपा सकते हैं कि हमारा उस दवाई की तरफ भी ईमान है कि हाँ जी, शायद दवाई यूज करे थे तो उससे हो गया, और हम खुदावंद से भी दुआ करते रहे। तो इसलिए इस तरह की जो हमारा ईमान है उसमें फिर इलाही शिफा नहीं है।
ठीक है, क्योंकि हम कुदरत की इस रूह को काम नहीं करने दे रहे और हम अपनी हिकमत या दुनिया की हिकमत को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसलिए हमने जो कह लें कि उसको खुदावंद को काम जो है वो नहीं करने दिया, है ना? और हम देखते हैं 7 जो सितारे हैं मसीह की नेमतों को ज़ाहिर करते हैं और जो कि कलीसिया की खिदमतें हैं। कलीसिया को कामलियत तक पहुँचाने के लिए रूह की नेमतों के साथ हमें मुख्तलिफ खिदमतें जो हैं वो दी गई हैं, है ना? और खिदमत गुज़ार जो हैं खुदा के खादम हमें दिए गए हैं। वो क्या कर रहे हैं यानी ये 7 सितारे क्या थे? खुदा के यानी कलीसिया में जो 7 वो क्या कहते हैं खादम जो थे, जो तैयार कर रहे थे हमने उसमें देखा है ना, तो ये उनको पेश कर रहे हैं और ये हम पढ़ते हैं एफिसियों 4 बाब और उसकी 11 और 12 आयत में कि ये 7 सितारे क्या हैं? जी, अंजना पढ़ना वफ़ा। 7 सितारे जो क्या हैं? खुदा के मत्ती खादम चैप्टर एफिसियों 4 बाब उसकी 11 और 12 आयत। 11 और 12 हुँ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਰਸੂਲ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਬੀ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸਵਾਨ ਅਤੇ ਉਸਤਾਦ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸੰਤ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹੀ ਉਸਰਦੀ ਜਾਵੇ। ਆਮੀਨ। आमीन, हाँ जी। तो खुदावंद ने ये खादम जो हैं या ये खिदमतें जो हैं कलीसिया को दी हुई हैं, चर्चेस को दी हुई हैं कि उसमें क्या कर रहे हैं? रसूल हैं, नबी हैं, मुबश्शिर हैं, चरवाहे हैं, उस्ताद हैं। ये एक किस्म खुदा ने खुदा के खादम चर्च को दिए हुए हैं, कलीसिया को दिए हुए हैं कि वो क्या करें खुदा के लोगों को तैयार करें, है ना? और ये खुदा की जो कह लें जो बातें हैं, वो हम तक पहुँचाते हैं। यानी जो हमारे पास्टर हैं, जो खुदा ने जिनको ये खिदमत दी हुई है, जो हमारे चरवाहे हैं, जो हमारे उस्ताद हैं, है ना? और जो नबी हैं, यानी वो खुदा की जो होने वाली बातें हैं, है ना? जो नबूवत है वो करते हैं, आने वाले और रसूल जो हैं वो खुदा की जो पैगाम है हम तक पहुँचाते हैं। मुबश्शिर जो हैं उनकी हम सबको ही मैं पता है कि वो क्या है उनकी खिदमत कि वो मनादी कर रहे हैं और क्या कहते हैं रूहों को बचा के एक किस्म का कह लें कि चर्च तक लेके आते हैं और चर्च में आगे जो खुदा के खादम हैं, उस्ताद हैं, पास्टर हैं वो उनको आगे जो तालीम है वो दे रहे हैं, है ना? और चरवाहे जो हैं वो एक किस्म का कह लें वो उनको सँभाल रहे हैं, उनकी जैसे कह लें परवरिश जो है वो कर रहे हैं, है ना? तो ये सब क्या है मिल के काम कर रहे हैं। यानी जैसे हम कह सकते हैं जैसे जावेद जो है हमें पता है कि बाहर जाता है मोड़ों पे और उसमें कह लें कि प्रचार कर रहा है और वहाँ पे जो रूहें जो हैं वो एक किस्म का बचती हैं जो और उनको चर्च में लेके आते हैं, है ना? ताकि आगे की जो तालीम है वहाँ पे तो सिर्फ़ उनको यानी यीशु के बारे में बताया जाता है कि उसने हमारी खातिर जान दी, उसने हमारे सारे गुनाहों को ले लिया और अगर वो कबूल करते हैं, ईमान लेके आते हैं तो फिर उनको चर्च में लाया जाता है ताकि चर्च में क्या है, बाकी की जो तालीम है, जो कामलियत की तरफ है, वो उस्ताद जो है वो खुदा उनका जो बंदा है, जो चरवाहा है, जो पास्टर है वो आगे लेके जाता है ना? वो कामलियत की तरफ लेके जाता है, खुदा के कलाम की जो गहरी बातें हैं वो उन तक पहुँचाता है ना? तो ये मिल के क्या कर रहे हैं खिदमत कर रहे हैं या मिल के जो हैं ये नेमतें जो हैं वो काम कर रही हैं। तो इसलिए ये कलीसिया को या चर्च को ये खुदा ने खिदमतें जो हैं वो दी हुई हैं। अब हमने यानी ये पीछे महल पर उनके बारे में सीखा था कि जो पेशवा हैं, जो पास्टर हैं, उनको कैसी खिदमत करनी चाहिए, कैसी जाँफ-ज़ानी से खिदमत करनी चाहिए, है ना? तो इस तरह के खुदा के खादम जो हैं वो हमें कामलियत की तरफ लेके जा रहे हैं, है ना? यानी वो बताते हैं कलाम में से समझाते हैं और अगर हम जो मसीही हैं
इन रूहों को काम करने दे, इन खिदमतों को काम करने दे अपनी जिंदगी में। पास्टर जैसा भी है, लेकिन जो वो हमें समझा रहा है, जो बता रहा है खुदा के कलाम में से, हमारा काम है कि उस पे ईमान लेके आए, उसको अपनी जिंदगी में लागू करें या उसको अपनी जिंदगी में अमल में लेके आए। तो ये सारी खिदमतें जो हैं, यानी मैं कहूँगी कि ये 7 सितारे जो हैं खुदा ने वो हमें दिए हैं, 7 रूहें जो हैं वो हमें दी हैं कि हम क्या करें, तैयार हों, कामिलियत की तरफ बढ़ें, है ना? कामिल बने, यस्सु की मानिंद बने। तो ये 7 रूहें और 7 सितारे यानी 7 खुदा के जो खिदमतें हैं, जो खुदा के खादम हैं, वो खुदा ने हमें दिए हैं। तो अगर हम फिर भी कामिलियत की तरफ ना बढ़ें, है ना? तो फिर इसमें किसकी गलती है? हमारी खुद की गलती है। तो इसलिए जब तक हम इन रूहों को इजाज़त नहीं देंगे, इन खुदा के खादमों की बात जो है उन पे अमल नहीं करेंगे, तो हम फिर कामिल अ, या जैसे कह लें पाकीज़गी की तरफ नहीं बढ़ सकते, है ना? तो इसलिए खुदावंद जो है ये इस कलीसिया से ये वाली बात जो है कर रहा है। बाकी जो बात है हम यानी आज हमने 7 सितारों के बारे में सीखा और 7 रूहों के बारे में सीखा है ना? कि ये हमारी ज़िंदगी में जो क्या कहते हैं, हमें क्या कर रही हैं, कामिल बना रही हैं, कामिलियत की तरफ लेके जा रही हैं। और अगर हम इनको इजाज़त नहीं देंगे, अगर हम इनके अपने काम नहीं करने देंगे अपनी कलीसिया में या अपनी ज़िंदगी में, तो हम कामिलियत की तरफ मुमकिन नहीं है कि पहुँच सकें। ये इसके बगैर, क्योंकि फिर क्या कर रहे हैं, हम अपनी अक्ल को या दुनियावी अक्ल को इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना? जो कि खुदावंद ने कहा कि वो क्या है, बेवकूफ़ी है। तो हम असल में फिर क्या कर रहे हैं, उन बेवकूफ़ कवारियों की तरह तैयार हो रहे हैं। तो इसलिए अगर हम दुनिया की अक्ल को, हिकमत को इस्तेमाल करते रहेंगे, तो हम उन बेवकूफ़ कंवारियों की मानिंद हम चर्च भी जाते रहेंगे, हम मैसेजेस भी बड़े सुन रहे हैं, लेकिन इन रूहों को अपनी ज़िंदगी में काम नहीं करने देंगे, तो उन बेवकूफ़ कंवारियों की तरह हम तैयार हो रहे हैं। इसलिए तो जब खुदावंद आएगा, तो वो तैयार नहीं होंगी, क्योंकि वो क्या कर रही हैं, वो दुनिया की हिकमत पे चल रहे हैं, वो दुनिया की अक्ल जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको खुदावंद ने कहा कि वो उनकी हिकमत जो है वो ख़त्म होने वाली है, वो क्या है, बेवकूफ़ी है। तो इसलिए हम जो हैं, खुदा के लोग जो हैं, हमें ये 7 रूहें, हिकमत की जो रूह है, अक्ल की अ, जो कुदरत की रूह है, ये खुदावंद ने दी हुई है। ये 7 रूहें जो हैं, इनको अपनी ज़िंदगियों में काम करने दें हम, ताकि खुदावंद के कद के अंदाज़ा तक पहुँचे, है ना? फिर हम जो है ओवरकमर जो है जो ज़िंदगी है वो गुज़ार सकते हैं। फिर हम खुदावंद के उस मेयार तक पहुँच सकते हैं, जहाँ के खुदावंद हमें बुला रहा है, जहाँ तक खुदावंद हमें लेके जाना चाहता है ना? तो बाकी की जो आयतें हैं उस पे हम बात करेंगे फिर। सिर्फ़ एक ये जो तीसरी चौथी आयत जो है जिसमें है लिखा है कि तौबा कर, अगर तू जागता ना रहेगा तो मैं चोर की तरह आ जाऊँगा और तुझे हरगिज़ मालूम ना होगा कि किस वक़्त तुझ पर आ पड़ूँगा। इस आयत को कह लें कि ज़रूर हमेशा हम अपने जैसे कह लें कि अ, आँखों के सामने या अपने ज़हन में रखें कि अगर हम तौबा नहीं करेंगे, अगर हम जागते नहीं रहेंगे, तो खुदावंद क्या है, चोर की मानिंद आ जाएगा। उन पे आएगा जो जाग नहीं रहे, है ना? जो खुदावंद के कलाम पर अमल नहीं कर रहे, उनके साथ ये खुदा बात कर रहा है। ये जो अगर कोई जाग रहा है, ये मेरा ख्याल थस्सलुनीकियों के खत में लिखा हुआ है शायद, है ना? कि उन पे जो जाग नहीं रहे, जो खुदावंद के कलाम पे अमल नहीं कर रहे, है ना? उन पे वो दिन जो है अ चोर की तरह आएगा, है ना? लेकिन हम जो जाग रहे हैं, खुदा के कलाम पे अमल कर रहे हैं, हमारे पे वो दिन चोर की तरह नहीं आएगा। और ये कुछ जो स्टडी है मेरा ख़्याल दी जाती है कि खुदावंद चोर की तरह आ रहा है ना? खुदावंद चोर की तरह खुदावंद यीशु मसीह नहीं आ रहा, है ना? क्योंकि ये यहाँ हम देखते हैं कि उनके लिए चोर की मानीदार है, क्योंकि कुछ
کہہ لیں اس طرح اسٹڈی دی جاتی ہے کہ جو ریپچر ہے اس کو چور کی طرح کہا گیا، ایک مووی بھی بنی ہوئی ہے شاید، لیکن ہمیں اس کلام سے اور ایک اور ورس ہے میرا لاسٹ جو چیپٹر ہے، ہم چل کے اس پہ بھی آگے چل کے بات کریں گے، ہے نا. تو خداوند ان کے لیے چور کی طرح آ رہا ہے، دلہن کو لینے وہ چور کی طرح نہیں آ رہا، کیونکہ دلہن تو تیار ہے، دلہن تو انتظار کر رہی ہے، وہ تو تڑپ رہی ہے کہ کب میرا دولہا آئے گا، ہے نا، کب ہم آسمان پہ جا رہے ہیں. وہ تو اس میں محرومیوں کے خط میں لکھا ہے کہ وہ تو کرا رہی ہے کہ کب وہ وقت آئے گا، ہے نا. تو اس لیے یسوع مسیح کی جو دلہن ہے، یا وہ لوگ جو اس طرح تیار ہو رہے ہیں، خدا ان کے کلام پہ عمل کر رہے ہیں، ان 7 روحوں کو اپنی زندگی میں کام کرنے دے رہے ہیں، اور وہ اپنے گناہوں کی کہہ لیں یا اپنے آپ کو وہ جانچ رہے ہیں، پرکھ رہے ہیں، ہے نا، ان پہ وہ دن چور کی طرح نہیں آئے گا، یا ان کو خدا یسوع مسیح چور کی مانند نہیں لینے آئے گا. یہ آگے چل کے ہم سیکھیں گے، اور ایک اور جو اسٹڈی ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے. لیکن آپ سے میں یہ جیسے کہ نہیں، کیونکہ چیپٹر میں یہ تھی آئے تو اس لیے میں نے کہا کہ ہم یہ ضرور یاد رکھیں، اس کو پکا کر لیں کہ جو خدا ان کے کلام پہ عمل کر رہے ہیں، جو اپنے آپ کو جانچ رہے ہیں، ان پہ وہ دن چور کی طرح نہیں آئے گا. اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے جو دلہن ہے غزل و غزلات کے اس میں، کہ وہ کیا ہے، جیسے ابھی ہم نے آیت پڑھی کہ اس کے دل کی آنکھیں روشن ہیں. کس میں پڑھا تھا، افسیوں کے خط میں ہم نے پڑھا تھا، خدا تمہیں اپنی پہچان میں حکمت اور مکاشفے کی روح بخشے اور تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں. یعنی دل جن کا تیار ہے، جس کے دل میں یسوع بسا ہوا ہے، جو ہر وقت اس کی جو اپنے دولہے کی ہے آواز کو پہچانتی ہے، وہ کیا کرے گی، وہ سو بھی رہی ہوگی لیکن کیا ہے، اس کی دل کی آنکھیں روشن ہے. اس کی دل کی آنکھیں جو ہیں، یا وہ ہر وقت اپنے دولہے کی انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے. تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ سوری میں دوسری آیت میں ہے غزل و غزلات میں، کہ وہ اٹھے گی اور وہ دروازہ کھولے گی، کیونکہ کیا ہے، وہ اپنے دولہے کی آواز کو پہچانتی ہے. لیکن جو دولہے کی آواز کو پہچانتے نہیں ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ دولہا بول رہا ہے یا شیطان کی آواز ہے نا. تو ان کے اوپر وہ جو کہہ لیں دن ہے، وہ چور کی طرح آ جائے گا. لیکن جو ہر وقت تیار ہے اور اس کی دل کی آنکھیں روشن ہیں، اس کے لیے جو ہے وہ دن چور کی طرح نہیں ہوگا، بلکہ وہ اپنے دولہے کے لیے اٹھے گی اور دروازہ کھولے گی، ہے نا. یہ دلہن کی بات ہو رہی ہے نا. تو اس لیے ہم جو ہیں دلہن کی معنی تیار ہو رہے ہیں. یسوع مسیح جو کیا ہے، ہم اس کی آواز کو پہچانتے ہیں. جیسے جو بھی ادھر شادی شدہ ہیں، ہمارا جو ہسبینڈ ہے، شوہر ہے، وہ کہیں پہ بھی بول رہا ہو، تھوڑی دور بھی ہو، تو ہمیں اس کی آواز کی سمجھ لگ جاتی ہے، یا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میرا جو ہسبینڈ ہے اس کی آواز ہے نا. کیونکہ روز ہی ہم اس سے باتیں کرتے ہیں، ہمارا گہرا رشتہ ہے اس کے ساتھ. تو جن کا خداوند یسوع مسیح کے ساتھ گہرا رشتہ نہیں ہے، بلکہ میں کہوں گی کہ بہت ہی کلیسیوں میں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یسوع ہمارا دولہا ہے اور ہمیں اس کے لیے تیار ہونا ہے نا. تو اس لیے جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ میرا دولہا، کیونکہ وہ تو اس کو باپ بلاتے ہیں، یسوع باپ. یسوع ہمارا باپ نہیں ہے، وہ یا تو ہمارا بھائی ہے یا ہمارا شوہر ہے نا. تو جن کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ دولہا ہے، میرا ہسبینڈ ہے، میری اس کے ساتھ منگنی ہوئی ہے، جب ہم خدا یسوع مسیح میں آ جاتے ہیں تو ہماری منگنی ہوتی ہے نا. تو خدا یسوع مسیح کے ساتھ ہے نا. تو شادی جو ہے وہ جب 7 سالہ اوپر جو خدا یسوع مسیح لے کے جائے گا تو وہاں پہ شادی ہوگی. جو 7 سالہ زمین پہ مصیبتوں کا دور ہوگا، تو اوپر خدا یسوع مسیح کی اور اس کی دلہن کی شادی کا جشن جو ہے وہ ہوگا. یہ آگے چل کے ہم پڑھیں گے، ہے نا. تو جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ دولہا ہے، تو آپ سوچیں کہ وہ پھر کیسی تیاری کر رہے ہیں، ہے نا. تو اس لیے جو تیار ہو رہے ہیں، جو ان کی باتوں کے، جو خدا کی لوگوں کے ذریعے خدا کے جو روحیں ہیں ساتھ ہمیں وہ تیار کر رہی ہیں، اگر ہم ان کی باتیں سن رہے ہیں، ان پہ عمل کر رہے ہیں، خداوند کی حکمت سے چل رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ہمارے دل کی آنکھیں جو ہیں وہ روشن ہیں، ہے نا. تو
हम तो हर वक्त तैयार हैं, हम तो कहते हैं हाँ खुदावंद आए, कब हम उस अपने दूल्हे के साथ वक्त गुजारेंगे, कब हम उसके बाजुओं में कह लें कि पनाह लेंगे, कब वो हमें अपने सीने से लगाएगा, कब हमें वो अपने बाजुओं में छुपा लेगा, परों में छुपा लेगा, है ना। तो इसलिए दुल्हन की आंखें तो उसकी तरफ लगी हुई हैं, ऐसी मोहब्बत, ऐसी जैसे कह लें जोश प्यार मोहब्बत से भरे हुए हैं हम। उन लोगों को खुदावंद यीशु मसीह चोर की तरह नहीं लेने आएगा। आगे चल के हम सीखेंगे कि किन को चोर की तरह लेने आएगा, है ना। तो खुदावंद आप सबको बरकत दे और हम सबको तैयार करे। यही कह लें मेरा एक बोझ है, मेरा एक मकसद है कि कलीसियाओं में ऐसी जो तालीम है वो नहीं मिल रही, वो मैं कहूँगी कि शहीदों को तैयार करें, वो अक्लमंद कमवारियों को तैयार करें। 99% कह लें कलीसियाएँ जो हैं, वो शहीदों को तैयार कर रही हैं, वो दुल्हन को तैयार नहीं कर रहे। तो इसलिए ये मेरा बोझ है कि हम दुल्हन की माने तैयार हों खुदावंद क्योंकि बचपन से आप लोग सुनते आए हैं जो कह लें हमारे पुराने हैं मसीही कि जी यीशु दूल्हे की मानीदार है, दूल्हे की मानीदार है। लेकिन कभी आपने उसको अपना दूल्हा समझा भी है? ये मैंने पहले भी एक दिन क्वेश्चन किया था। कभी किसी ने आपको बताया भी है कि दूल्हे की आपकी मंगनी हो गई हुई है, तो दूल्हे की हर वक़्त बातें होनी चाहिए, उसको क्या पसंद है, क्या नहीं है। तो ये बताया ही नहीं जाता हमें, हमारी जो माँ है मतलब जो कलीसिया है, वो जो हमारी परवरिश कर रही है ना? वो हमें समझाती नहीं है कि जी ताड़ी मंगनी हो गई है। जिस तरह पौलुस रसूल कहता है कि मैंने तुम्हारी एक ही शौहर से निस्बत की है, मंगनी की है। पौलुस रसूल देखें अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को बता रहा है, लेकिन हमारी जो मतलब पासबान है या वो समझाते नहीं है हमें बताते नहीं है कि तेरे दूल्हे को ये पसंद है, ये कर, उसको ऐसे कपड़े पसंद है, उसको ऐसा जेवर तू पहन, वो पसंद है ना। और बार बार उसका बताएं कि वो हमारा दूल्हा है, लेकिन हमें बताया नहीं जाता कि वो हमारा दूल्हा है। हम गीतों में भी गाते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं है, वो अक्ल जो है वो दिल की, हमारी आंखें रोशन नहीं है कि हमारा दूल्हा आने वाला है, तो उसकी तैयारी हम करें, है ना। तो मेरा ये बोझ है। तो शुरू से मैं यही कोशिश कर रही हूँ हर किसी ना किसी तरीके, जैसे जो कह लें जो भी मैं स्टडी पहले दी है, आगे भी जो दूंगी, या अब ये मकाशफा की किताब, उसमें मेरी ये कोशिश है या मेरा बोझ है कि मैं आपको समझाऊं कि वो हमारा दूल्हा है। क्योंकि जो लास्ट वर्स है मकाशफा की किताब में, जिसमें हम कहते हैं, पढ़ते हैं कि रूह और दुल्हन भी कहती है कि आ, दूल्हे को कह रही है कि आ। तो दूल्हे के बारे में हमें पता नहीं है। तो मेरा बोझ है कि मैं दूल्हे के बारे में आपको बताऊं, यीशु के बारे में बताऊं कि वो अ, अगर हम कहते हैं कि रैप्चर होगा तो दूल्हा लेने आ रहा है, कोई और नहीं लेने आ रहा है, ठीक है। तो खुदावंद आप सबको और मुझे भी बरकत दे, तैयार करे, और हम इन 7 रूहों को इजाजत दें कि हमारी जिंदगी में वो काम करें। और जो नेमतें हैं खुदावंद ने जो खिदमतें दी हुई हैं, उनको भी अपनी जिंदगी में काम करने दे। तो खुदावंद आप सबको बरकत दे। बैक टू अंजना। प्रेज द लॉर्ड खुदावन ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਇਤ ਨਾਲ ਖੁਦਾਵੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ। ਖੁਦਾਵੰ ਦਾ ਮਸਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਠਹਿਰਿਆ ਰਹੇ ਤੇ ਵਾਕਈ ਅੱਜ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਸੀਲਾ ਨਾਲ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਖੁਦਾਵੰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੇ, ਖੁਦਾਵੰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਦਾਵੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਅਬਲੀਸ ਨੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪਰਦੇ ਗਿਰਾਏ, ਖੁਦਾਵੰ ਉਹਨਾਂ ਪਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਦਾਵੰ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੇ। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक मिनट, सॉरी अंजना, मैं सबसे कहना चाहती हूँ कि मीटिंग प्रेयर के बाद या प्रेयर के दौरान आप ना जाएं। हम एंड में थोड़ी सी बात करेंगे मीटिंग के बाद, तो कोई भी ना जाए, ठीक है जी अंजना, सॉरी। लास्ट प्रेयर में ਅਸੀਂ सिस्टर सनिया ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ। सिस्टर सनिया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन का शुक्र करते हैं इस खूबसूरत खुदावन की आवाज़ के लिए जो खुदावन ने पाक रूह के जरिए अपनी खादमा के मुंह से हमें पहुंचाई। हम खुदावन का इसके लिए शुक्र करते हैं। अब हम लास्ट प्रेयर करेंगे।
Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. थैंक यू जीसस। प्यारे खुदावंद यीशु तेरा शुक्र करते हैं, तेरे नाम को हम सबसे ऊंचा करते हैं क्योंकि तेरा नाम सबसे ऊंचा है, तेरा नाम आला है। तेरे नाम जैसा कोई और दुनिया में, इस पूरी खलकत कायनात में कोई और नाम नहीं जो तेरा नाम है। हम उसकी दुल्हन है और तू हमारा शौहर है। यस लॉर्ड, तेरा शुक्र करते हैं इस प्यारी, इस खूबसूरत तेरे प्यारे खुदाम रिश्ते के लिए। हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें अपनी दुल्हन बनाया। हमारे में ऐसी कोई खूबसूरती नहीं थी, हम इतने खूबसूरत नहीं थे, लेकिन जब से हम खुदावंद तुझे पहचानना शुरू हुए, तो अपनी आंखें हमारी खोल रहा है रोज ब रोज खुदावंद, अपने पाक रूह के जरिए, अपने पाक कलाम के जरिए हमें रूहानी आंखों के साथ रूहानी कान दे रहा है। तब हम तुझे जान पा रहे हैं कि तू हमारा शौहर है और हम तुझे रोज बरोज सहराते जा रहे हैं, रोज बरोज हम तुझ में बढ़ते जा रहे हैं। ओ खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं। ओ मेरे प्यार से भरे खुदावंद, हम तुझे मुबारक कहते हैं क्योंकि तू मुबारक है, तू मुबारक रहेगा, तू हमेशा तक रहेगा, तू मुबारक सदा से है। हम तुझे मुबारक कहेंगे, हमारी सबकी एक एक जान तुझे मुबारक कहे क्योंकि तू मुबारक है। हम तेरे नाम को ऊंचा करेंगे। यस लॉर्ड, तेरा शुक्र करते हैं मेरे खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद इस आवाज के लिए जो तूने हमारे कानों तक पहुंचाई। हम तेरा शुक्र करते हैं कि तेरा पाक रूह हमारे साथ है, तेरे पाक रूह की बदौलत हमारे दिलों में ये कलाम नक्श हुआ, हमारे दिलों तक पहुंचा, हमारे कानों के जरिए हमारे दिलों में तेरे खुदावंद तूने हमारे दिलों की तख्तियों पे लिखा। हम इसके लिए तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि तू हम में काम कर रहे, तेरा पाक रूह हमारे साथ है, तेरा तख्त हमारे दरमियान लगा है। प्यारे खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, जबकि हम एक एक जान तेरे आगे प्यारे खुदावंद अपने सरों को झुकाए हुए हैं, तो खुदावंद तो अपना हाथ हम पे बढ़ा। हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं। जितनी जाने यहाँ मौजूद हैं खुदावंद, हम सब मिल के मुत्तफिक होके तेरे नाम को मुबारक कहते हैं। हम तुझे मुबारक कहते हैं क्योंकि तू मुबारक है मेरे खालिक, मेरे मालिक, मेरे तू शफीक है, तू गयूर है, तू रहीम है, तू हमेशा तक रहने वाला है। हम तुझी को मुबारक कहेंगे क्योंकि तू हमारा बाप है। ए मेरे खुदावन, तू हमारा बाप है। हम जब भी तेरे आगे अपनी झोलियां लेके आते हैं तो कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाता क्योंकि तेरे हाथ में ताकत है, तेरे हाथ में कुदरत है, तेरे बाजू में ताकत है। तू वो खुदा है जिसने कभी कोई जंग नहीं हारी। खुदावन, तू हमारा साहिब जंग है। तूने तेरे खुदावन, तू हमारे आगे अपनी आतिशी तलवार को लेके खड़ा है, हमारे आगे अपना तलवार को लेके खड़ा हुआ है, जो कि कोई भी जिसके आगे कोई ठहर नहीं सकता। खुदावन, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें अपने पीछे छुपाया और तू हमारे आगे है। हम इसके लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावन। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। इस प्यार के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावन, तेरी इस प्यार और मोहब्बत के लिए जो तू हमसे करता है खुदावन। हम तुझ में और ज्यादा मजबूत होते जाएं, हम तुझ में तरक्की पाते जाएं खुदावन जी। तेरे बिना हम कुछ भी नहीं है खुदावन, तेरे बिना हम कुछ भी नहीं है खुदावन जी। हम गिरते जाएं खुदावन, हम तुझ में तेरे खुदा मजबूत हो। हम अपने आप अपने जोरे बाजू से अपनी हिकमत पे कोई फख्र ना करें खुदावन जी, क्योंकि तेरे पाक कलाम में लिखा है फख्र करने वाला खुदावन पर फख्र करे, क्योंकि खुदावन तू ही फख्र के लायक है। हमारा फख्र, हमारा गुरूर, हमारा जिंदा खुदा है जिसके बाजू में ताकत है, जिसके हाथ हमें छुपाते हैं, जिसके हाथ हम पे जब खुलते हैं तो एक एक जान को खुराक मिलती है। हर जानदार को खुराक मुहैया होती है, हर जानदार की ख्वाहिश के मुताबिक उसकी दिली मुरादें पूरी होती हैं। यस लॉर्ड, तेरा शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। तेरे जब हाथ खुलता है खुदावन, तू हमें मुश्किलों से भी निकाल लेता है खुदावन, तू दलदलों से निकाल लेता है। तेरा शुक्र करते हैं, तू जो हमारे अंदर रोज बरोज प्यारे खुदावन हमें खाली करके अपने आप से भर रहा है। तेरे पाक रूह की आग हमें लगी है खुदावन, इसके लिए हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावन जी। प्लीज हम फिर से तेरी मिन्नत करते हैं कि तू हमारी रूहानी आंखों को तेरे खुदावन खोले रखना, एक एक की आंखों को खोल दे, रूहानी कानों को खोल दे, रूहानी जुबान दे हमें। प्यारे खुदावन, हमारा दिल तेरा दिल हो जाए, हमारा दिल ना रहे खुदावन, इसमें तेरा घर हो। ये तेरा घर है खुदावन जी, इसे अपने लिए तैयार कर, इसे अपने लिए पाक कर, इसके अंदर बदी ना रहे खुदावन, इसके अंदर खुदावन जी कोई नापाकी ना रहे खुदावन। हम दूसरों को माफ करने वाले हों, जिस तरह तू माफ करता है खुदावन, हमें भी माफ करना सिखा। हाँ, तूने जो हमारे गुनाहों को माफ किया, बर्फ की माने धो
دیا, صاف کر دیا, خداوند اس کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں. تیرا شکر ہو, تیرا شکر ہو, تیرا شکر ہو, تیرا شکر کرتے ہیں خداوند. ایک ایک سانس جب ہم سانس لیتے ہیں ان سانسوں کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں. تو نے جو خداوند ہمیں پیدا کیا اس دنیا میں پیارے خداوند, اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا, ہمارے میں ایسی کوئی قدرت نہ تھی خداوند, ہمارے میں کوئی ایسی چیز نہ تھی, لیکن تیری قدرت ہم میں ظاہر ہو رہی ہے, تیرا جلال ہم میں ظاہر ہو رہا ہے. اس کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں. پریز دا لارڈ. تھینک یو جیسس, تھینک یو جیسس, تھینک یو جیسس. ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہے کہ خداوند ہم تیرے نام کو اونچا کرے. ایسے الفاظ دے خداوند جی جو تیرے نام کے مطابق ہوں خداوند جی, کیونکہ یہ زبان پیارے خداوند نہ جانے انجانے میں پتہ نہیں کتنے گناہ کر جاتی ہے. یہ سوچی خداوند جی پتہ نہیں نہ جانے کیسے گناہ میں دس جاتی ہیں, لیکن خداوند ان سوچوں کو پاک کر دے. تیرے روح کی ہدایت سے چلیں, تیری پیارے خداوند آواز کو سننے والے ہوں خداوند. ہمیں وہ جو تیری آواز کو سنے خداوند, شیطان کی آواز کو نہ سنے, اس کی آواز کو سن کے خداوند جی ہم فوراً تجھے پہچان لے کہ ہمارا یسوع راجا ہمیں کیا کہتا ہے, وہ ہمیں اپنے لیے تیار کر رہے ہیں. ہم فوراً اس سے انکار کریں کیونکہ خداوند سے ہم جڑ چکے ہیں. ہم خداوند تجھ سے ہم انگیج ہو چکے ہیں خداوند, ہماری منگنیاں تجھ سے ہو چکی ہیں. ہم تجھ سے دور نہیں ہونا چاہتے خداوند, ہمیں اپنے سے دور نہ لے کے جانا خداوند کبھی بھی. ہم تیرے بچے ہیں خداوند, تیرے بچے ہیں. اے میرے پیارے خداوند, ہم اپنے بچوں پہ اپنے دیا کا ہاتھ بڑھانا. تو نے جو اپنا بیٹا دے کے خداوند ہماری جانوں کو بچایا ہے, تو آج خداوند جہاں کہیں ہم کمزور ہیں خداوند تو ہماری قوت بن جا خداوند, ہمارا زور ہماری طاقت بن جا خداوند. ہمارے میں ایسی کوئی لیاقت نہیں ہے, ہمارے میں ایسا کچھ نہیں ہے خداوند جی. ہم خاک ہیں کیونکہ ہم خاک سے بنے ہیں, ہم ہیں ہی مٹی خداوند, ہمیں کچھ بھی نہیں ہے. لیکن جب تو اس مٹی سے ہمیں شیپ دے گا تو خداوند تبھی ہم تجھ میں پیارے خداوند بنیں گے, اور تیرے پاک روح کی آگ, تیرے پاک روح کا تیل ہم میں جلے گا, تبھی تو پیارے خداوند ہم روشن ہوں گے. ہمیں ایسا روشن کرے. یس لارڈ, تیرا شکر کرتے ہیں. یہ برتن خالی نہ رہیں خداوند, تیرے روح سے بھرے. یس لارڈ, تیرا شکر کرتے ہیں, تیرا شکر کرتے ہیں. تیری شمعیں ہمیشہ جلتی رہیں, تیرا پاک روح ہمیں ہمیشہ سرگرم رکھے. کیونکہ خداوند جی جب کبھی ہم اپنی سوچ سے سوچتے ہیں, انسانی سوچوں سے سوچتے ہیں, تو خداوند ہم گر جاتے ہیں. کیونکہ خداوند ہمارے میں ایسا کچھ بھی ایسا اپنی حکمت سے خداوند تو اپنی حکمت دے, ہماری عقل کو فیل کر دے, تو اپنی حکمت کی روح دے. یس لارڈ, تیرا شکر کرتے ہیں. آج یہ 7 روح خداوند جی مانگ لیتے ہیں اور پاتے ہیں خداوند, کیونکہ تو دینے کی قدرت رکھتا ہے. ہم اجازت دیتے ہیں, ہم انہیں اجازت دیتے ہیں, ہم اجازت دیتے ہیں. لے خداوند اور استعمال کر, ان بدنوں کو استعمال کر, ان سوچوں کو لے خداوند اپنی روح انڈیل لے خداوند. ہم چاہتے ہیں کہ تو ہمیں اپنی روح کو انڈیل, کیونکہ خداوند تیری روح کے ذریعے ہی سے تو خداوند ہم پاک ہوں گے, پاکیزگی کی طرف ہوں گے. پیارے خداوند ہم کسی پہ بھی بھروسہ نہ کریں خداوند, کسی پہ بھی بھروسہ نہ کریں. ہمارا بھروسہ, ہمارا توکل, ہمارا کامل یقین ہمارا خدا ہے. ہم تجھ میں ایمان میں مضبوط ہو جائیں, ہم ایمان میں طاقت پائیں, کیونکہ خداوند ایمان کے ذریعے ہم تجھ سے جڑے رہیں گے. ہماری تجھ سے جوڑیاں میرے خداوند, ہماری ڈوریاں تجھ سے بن جائیں گی, اور وہ چینیں بندیں گی کہ جو ٹوٹنے والی نہیں ہوتی. یس لارڈ, ہمیں وہ چین میں پرو دے, ہمیں ان موتیوں میں پرو دے خداوند. ان پیارے خداوند تو وہ سٹون بنا لے جو تجھے پسند ہے. ہم وہ سٹون بنے, وہ پیارے خداوند چمکتے ہوئے موتی نظر آئے, جو دور سے لوگ جان لے کہ یہ تیرے ہیں خداوند جی, یہ تیرے ہیں. کیونکہ خداوند تو کبھی بھی خداوند بے صورت نہیں بناتا خداوند, کبھی بھی کسی کو خداوند کبھی گرنے نہیں دیتا, کبھی کسی کو پیارے خداوند برا سوچتا ہی نہیں ہے. ہم انسان خداوند کسی کے لیے برائی سوچتے ہیں, لیکن خدا تو ہمارے لیے برائی نہیں سوچتا, تو ہمارے لیے ہمیشہ اچھے سے اچھا کرتا ہے. جب ہم گناہ میں تھے تبھی تو نے خداوند اچھے سے اچھا ہمارے لیے کیا, ہماری سوچ سے بڑھ کے کیا, کیونکہ خداوند تو جانتا تھا, تو ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہمیں جانتا ہے خداوند. تیرا شکر کرتے ہیں. اور خداوند تو روز بروز جو ہمیں اپنی قوت سے بھر رہا ہے, اس کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں خداوند. ہم سے کبھی دور نہ ہونا خداوند, ہم سے کبھی دور نہ ہونا. ہمارا رشتہ
हमेशा तुझ में मजबूत हो जाए। खुदावन तेरी बरकतों को रिसीव करते जाएं खुदावन। मैं अपने आप को खुदावन जी सर के बालों से पांव के तलवे तक तेरे लहू में छुपाती हूँ, अपने बच्चों को तेरे लहू में छुपाती हूँ खुदावन, अपने हस्बैंड को, अपने घर को तेरे लहू में छुपाती हूँ। इसी तरह खुदावन मैं पूरे तेरे खुदावन सबसे पहले अपनी खुदावन तेरी खादमा के लिए जो तूने मखसूस किया खुदावन, हमने चूज नहीं करी, हमने कोई इनके लिए वोट नहीं डाले खुदावन, इन्हें तूने चूज किया खुदावन। हम इसके लिए इनके लिए तेरा शुक्र करते हैं, इनके लिए तेरी बरकत चाहते हैं, इन्हें तेरे लहू में छुपा देते हैं। यस लॉर्ड, इन पे तेरी और हिकमत आए, तेरी सातों रूहें इनमें काम करें। यस लॉर्ड, और हम तेरे वफादार हैं खुदावन जी। इसी तरह खुदावन अपने रहनुमा के जो तूने हमारे लिए खादमा मुकर्रर की हैं, इनके भी वफादार हैं। हमें वफादारी की स्पिरिट डालना, और ये वफादारी की स्पिरिट हमेशा हमारी नस्लों तक चले, ताकि खुदावन हम किसी के अंदर से खुदावन जी कीड़े ना निकालने वाले हों, किसी के जब खुदावन तेरी आवाज को सुने तो किसी के अंदर से खुदावन जी कोई ऐब ना निकाले, बल्कि सिर्फ और सिर्फ तेरी आवाज को सुने, क्योंकि तू हमारी तेरे खुदावन हम तक अपने पाक रूह के जरिए अपनी बातें सिखा रहा होता है खुदावन। हमारे अंदर से ये गंदगी भी धो दे, जहां कहीं हम कमजोर है साफ कर खुदावन जी। तेरी मिन्नत करके कहती हूँ खुदावन जी, मैं अपनी तेरे खुदावन तेरी अजीम खादमा को खुदावन तेरे हाथों में सौंप देती हूँ खुदावन जी। इन्हें और बरकत दे, इन्हें और तरक्की दे, इन्हें अपने अंदर छुपा ले खुदावन, अपने परों में छुपा ले, इन्हें अपना और जोड़ दे खुदावन, काबों की मादन जोड़ दे खुदावन। ये तुझ में और ज्यादा मजबूत हो, तुझ में और ज्यादा गहरी होती जाए, जहां कहीं कमजोर है खुदावन तू इनकी ताकत बन, क्योंकि खुदावन ये खुदावन तुझ में मसरूर रहती हैं। और इसी तरह खुदावन तू जो मसा इन पे डाल रहे हैं खुदावन, इस पूरे ग्रुप पे अपनी खादमा के वसीले से खुदावन इस पूरे ग्रुप पे अपने यही मसा डाल, यही मसा तेरा वही अनॉइंटिंग मांगते हैं, तेरा खास मसा मांगते हैं खुदावन यीशु मसीह, जो तुझ में है, जो तुझ में साथ रुएं काम करती थी खुदावन, हम एक एक पे काम करें यीशु के नाम में, यीशु के नाम से। तेरी आंखें जब हमें देखें तो खुदावन हमसे घिन ना खाएं, हमसे नफरत ना करें, बल्कि तेरी आंखें हमें देख के खुदावन खुश हो जाए और तेरा आसमान हम पे खुले यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में ऐसा हो। यस लॉर्ड, खुदावन तेरी बरकतों को चाहती हूँ खुदावन, तेरी इलाही बरकतों को चाहती हूँ, तेरी प्यारे खुदावन बिग अनॉइंटिंग को मांगती हूँ, सुपर नेचुरल फेवर को मांगती हूँ। जहां कहीं हम प्यारे खुदावन हमें फेवर, प्यारे खुदावन कहीं भी हमें फेवर नहीं मिलती, वहां पे तेरी सुपर नेचुरल फेवर काम करे, वहां पे प्यारे खुदावन तेरे खुदावन बरकत काम करे, क्योंकि खुदावन तेरी बरकत के जरिए, तेरी खुदावन कुदरत के जरिए जुए तो टूटते हैं खुदावन। तू हमेशा से, जब से तूने दुनिया को हिकमत से बनाया, तब से तेरी हिकमत हर इंसानों में जो तुझसे पवित्र है खुदावन उनमें काम करती है खुदावन। हम वही बरकत तुझसे चाहते हैं खुदावन जी, और डबल ब्लेसिंग चाहते हैं खुदावन जी, डबल ब्लेसिंग चाहते हैं। हमारी नस्लों में कन्वर्ट हो। यस लॉर्ड, हमारी नस्लों को वफादार बना ले खुदावन जी। तुझसे मिन्नत करके कहती हूँ, हमारे बच्चों को तेरे खुदावन अपना फर्मा बरदार बना दे, इनमें खौफ की स्पिरिट आ जाए, तेरे खौफ की स्पिरिट, ये किसी से ना डरे खुदावन, तेरे अलावा किसी से ना डरे। जब तेरा खौफ उनके आएगा तो खुदावन ये मजबूत होंगे, ये जड़ पकड़ेंगे। और खुदावन जिस तरह तू हमें प्यारे खुदा इस्तेमाल कर रहा है, तू हमें हमारी जुबान से अपनी हमद के नजराने, हमारे गीतों के प्यारे खुदावन अपनी तमजीद करवा रहा है, इससे बढ़ के खुदावन मसा हमारे बच्चों में कन्वर्ट हो खुदावन, वो तुझे पहचाने खुदावन, तेरे और खुदावन लाखों बिलियन ट्रिलियन रूहों को बचाने का सबब बने। यस लॉर्ड, मिन्नत करती हूँ। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, हाँ खुदावन तू कर दे, तू करने की कुदरत रखता है, रूह पाक तू कर सकता है। पाक रूह आज तू हर एक को जिनके नाम में नहीं ले रही खुदावन, तू उनको पूरे जो ग्रुप में मौजूद है खुदावन, मैं नहीं खुदावन, तू जानता है इन्हें, एक को नाम बनाम बरकत दे, एक को नाम बनाम छू पाकरू, एक के साथ हर एक के साथ हो खुदावन। तू इन्हें नामों के साथ जानता है, क्योंकि तूने नाम लेके बुलाया है खुदावन। तेरे पाक कलाम में लिखा है कि तूने नाम लेके बनाया है, तू मेरा है, हम तेरे हैं खुदावन, हम हाजिर हैं, हम तेरे हैं। यस लॉर्ड, हम तेरे हैं। जिस तरह सैमुएल नबी कहते हैं खुदावन, तेरी आवाज को सुना उसने खुदावन, तेरे नाम पे लब्बैक कहा कि मैं हाजिर हूँ। आज खुदावन हम हाजिर हैं, तू जो चाहता है हमसे काम ले, तू जो चाहते हैं हमसे प्यारे खुदावन तू वो उस तरह इस्तेमाल कर। ये खाली बर्तन आज खुदावन तो अपने प्यारे खुदावन कुदरतों से, अपनी रहमतों से, अपने फजल से, अपनी सात रूहों से भर ले
खुदावन, और Yes, लबरेज हो यीशु के yes, नाम में। yes, और Lord. मेरे खुदा सैराब, प्यारे खुदा सैराब दूसरे लोगों को सैराब करें यीशु के नाम में। Amen. हालेलुया, 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 हालेलुया। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Rabba, 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 rabba. Shendoro, ra, 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 ba, ri, 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 ri. Shendoro, ro, 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 ra, ba, 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 ra, 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 ra. Sika, ra, ba, ri, 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 ri. Ra, ba, 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 ra, 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 ra. Ra, ba, ri, 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 ri. Shendoro, ro, ro, ba, ri, 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 ri. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. तेरी बरकतों को रिसीव करें, तेरी बरकतों को रिसीव करें। तेरा काम जलाली है, तेरा नाम जलाली है। आज वही जलाली काम हमारी जिंदगियों में कर। यस लॉर्ड, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। मैं सबसे चाहूंगी कि खुदावन का शुक्र करना शुरू करें, क्योंकि खुदावन हमें दे रहा है। मैं उसका शुक्र करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तेरा शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं। तुम हमारे दरमियान आ गए हैं खुदावन, तेरा शुक्र करते हैं। हम तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। हमारे में कुछ भी नहीं है खुदावन, आज हम घटे तू बढ़े, हम छुपे तू दिखे। तेरा यीशु नाम हमारी जिंदगी में इज्जत और जलाल पाए। खुदावन हमारी जिंदगियों में तू नजर आए, हम नजर ना आए। खुदावन जी, हम अपने बालों से लेके खुदावन सर के पांव के तलवे तक खुदावन जी अपने आप को तेरे हैंड ओवर करते हैं, क्योंकि खुदावन तू भरने की कुदरत को रखता है और तू भर रहा है। यस लॉर्ड, तेरा शुक्र करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे खुदावन जलाली है, मेरा खुदावन रहीम है, वो गयूर है, वो रहम करने वाला है, वो कादिर है। यस लॉर्ड, तू कर रहा है। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन हम ईमान रखते हैं कि तू हमारे दरमियान मौजूद है, क्योंकि मेरे खुदावन तो ईमानदारों की जिंदगी में मौजाद करता है। और प्यारे खुदावन तूने कहा है कि खुदावन सुनना तेरे कलाम से। खुदावन ईमान रखने वालों की जिंदगी में तू मौजाद कर। आज जो भी तुझ पे ईमान लाए खुदावन, वो खाली हाथ ना जाए, वो खाली दामन ना लौटे। खुदावन जी, तेरे आज वो झोलियां भरे तुझसे खुदावन जी, क्योंकि तेरा हाथ तो खुला है खुदावन जी। तेरा हाथ खुदावन तो किसी को माप के नहीं देता खुदावन जी। तो अपना हाथ बढ़ाता है और उसकी जिंदगी में हो जाता है। खुदावन आज आसमान खोल दे। यस लॉर्ड, तेरी बरकतों को रिसीव करें। यस लॉर्ड, तेरा शुक्र, तेरी तंजीद हो। प्रेज द लॉर्ड। और प्यारे खुदावन, जहां कहीं हम गुनाहगार हैं खुदावन जी, वो गुनाहों को तू माफ करना खुदावन। और कभी खुदावन उन्हें याद ना करना खुदावन। तो हमें कभी भी गुस्से से तनबीह ना करना, बल्कि खुदावन तेरा प्यारे खुदावन दयालु हाथ हम पे बढ़े और खुदावन हम तुझ पे प्यारे खुदावन तुझ में मजबूत हो जाए। और खुदावन तेरी इस बरकत को लेके खुदावन अपन कभी गुरूर ना करें खुदावन के हमने खुद से पाया है, बल्कि ये तेरा दिया हुआ, ये जाने भी तो तेरी दी हुई है खुदावन जी। ये औलाद तेरी दी हुई है, हमारे हस्बैंड तेरे, माँ बाप तेरे दिए हुए हैं खुदावन जी। हमारा इसमें कोई भी प्यारे खुदावन जोड़ नहीं है। जो कुछ तू देने को है उसमें भी खुदावन तेरे नाम को मुबारक करेंगे, क्योंकि तू दे रहा है खुदावन। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। प्रेज द लॉर्ड। ये सब कुछ मांगती हूँ खुदावन यीशु मसीह के वसीले से, जो हमारा निजात दहिंदा है खुदावन। हम तेरा शुक्र करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और ईमान से पाते हैं। यस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड। तेरा शुक्र हो, हमारी दुआओं का जवाब देने के लिए खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब हमारे खुदा उनका फजल, उसकी तसल्ली, उसका इत्मीनान हम सबों के साथ हमेशा तक होता रहे, जब तक के खुदा यीशु मसीह आ नहीं चाहता। आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा उनकी हुजूरी हमारे दरमियान है। मैंने देखा है ऐसे जैसे हम ने एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए हैं, और खुदा का जब मसा है हमारे ऊपर, एक मैंने वाइट रोशनी की सूरत में देखा है। और फिर मैंने देखा है कि जैसे खुदावन जो है हमारे दरमियान जो है, यानी हम सर्कल की सूरत में खड़े हैं और खुदावन हमारे दरमियान है। तो खुदावन का शुक्र मैं करती हूँ कि यानी हम एक रूम में बंधे हुए हैं। खुदावन जो है अपने मुंह की जो बातें हैं वो हमारे साथ कर रहा है, और मेरा ईमान है कि हम सब जो हैं इन बातों पे ईमान रखते हैं। तो इसलिए खुदा उनका शुक्र हो, उसकी तारीफ हो कि वो हमारे दरमियान है और उसने हमें टच किया है। अगर और भी किसी ने कोई इस प्रेयर में या मीटिंग में खुदा ने आपको टच किया है,
तो आप शेयर कर सकते हैं। खुदा उनकी हुजूरी हमारे दरमियान मौजूद है। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर जी। हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड, मुझे टच किया है प्रेयर के दौरान प्रेज गॉड, इस तरह। प्रेज गॉड। खुदावंद आपको बरकत दे सिस्टर। खुदावंद Thank- आपको टच कर रहा है, वो आपकी जिंदगी को तब्दील कर रहा है और आपकी फैमिली को भी खुदावंद जरूर टच करेगा और वो भी अपने जिंदा खुदा को मानेंगे। गॉड ब्लेस यू। किसी और को कुछ कहना है? आप जरूर सिस्टर रमनदीप को प्रेयर में याद रखें, उसकी फैमिली को, और ताकि वो भी खुदा उनको जिंदा खुदा को कबूल करें। जी, किसी और ने कुछ कहना है? नहीं तो फिर हम मीटिंग को बंद करें। ओके जी, ठीक है फिर मेरा ख्याल। गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट। हाँ जी, भाभी जी कुछ कहना है आपने? जी ओके, ठीक है जी, गुड नाइट।